So Dr. Abdul Kalam used to say, the purpose of education is to make good human beings with skills and expertise. Enlightened human beings can be created by teachers, and changes in the education policy is a major way to provide the nation with better students, professionals as well as better human beings. Hello, I am Resham and you're watching DNP India. Firstly, welcome back to our channel. So I am sure that you all might be aware of the fact that after years of extensive research and consultation, the National Education Policy, which is the NEP 2020, has been launched, and trust me when I say that these transformation reforms, when implemented as well as executed in the right manner, have the power to bring about a change in the country, nation, India, and can further bridge the gap and take a shift from being a developing to a developed one. So while speaking with a lot of individuals, एक फैक्टर which I actually notice is that लोगों को इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं. There is a lack of clarity and people are unsure कि अभी on paper it all looks so good, but क्या हमारी कंट्री, the authorities इसे सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगी या फिर सिर्फ एक प्लान ही रह जाएगा. So to give you more insights on this and also हमें एक deeper knowledge देने के लिए about NEP, the new education policy, we are going to talk to an expert, a person who not only has an in-depth knowledge about this new policy. So today we are going to talk to Professor Amar Prakash Garg, who is the Vice Chancellor of Shobit University, Meerut, and trust me when I say this, he actually has a lot to offer. He has the experience as well as lot of recommendations regarding this new policy. And yes, to the viewers out there, Professor Amar Prakash Garg actually has also made some special appeals, and if we work on them, things are definitely going to get better. So let's get more insights. Welcome to DNP India. It's a pleasure that हम आपसे आज बात करने वाले हैं, and I'm sure कि हमारे बहुत सारे doubts, confusions इस segment में clear होने वाले हैं. My personally as well as those of the viewers. So thank you so much for connecting with us. And sir, जो पहला question मैं आपसे पूछना चाहती हूँ is about the NEP, the new education policy, जो हमारा आज का segment उसी पे based है. Like उस पे बहुत सारे एक हमें पता है कि क्या है, बट उसमें भी बहुत confusion है. It's not that clear. So we would really want to know, like as a common man, as a common individual, कि of the basis of the new education policy 2020 NEP and what it, मतलब आप थोड़ा brief में हमें अगर हमें और as well as हमारे viewers को आप बता सकेंगे तो. Thank you very much for giving me an opportunity to interact with the public. न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार ला रही है, ये आफ्टर 34 इयर्स आई. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है इस पॉलिसी की, वो ये है कि सभी को एजुकेशन मिले और स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्किल ओरिएंटेड. अब हमारे पास जो इस समय एजुकेशन है, उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, लेकिन वो इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं हो पाता, सोसाइटी से कनेक्ट नहीं हो सकता. वो रेडीमेड नहीं है. वो इंडस्ट्री में जाता है तो इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसके पास स्किल नहीं. और दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो ड्रॉप आउट, मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, बीए में लिया, बीएससी में लिया, बीटेक में लिया, और 1 साल बाद या 2 साल बाद वो स्टूडेंट कहता है कि भाई मैं तो नहीं चल पा रहा हूँ या मेरे लिए ठीक नहीं, तो उसको ड्रॉप आउट करना पड़ता है और वो ब्लैंक जाता है. तो ये जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एड्रेस किए, और उसको एड्रेस करने का जो सिस्टम बनाया गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो ये है कि एक तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 5+3+3+4, पहले 5 साल में स्टूडेंट रहेगा, बच्चा रहेगा, फिर 3 साल वो पढ़ेगा, 8वीं क्लास तक आएगा, फिर 3 साल 11वीं क्लास तक आएगा. 11वीं क्लास के बाद ही वो यूनिवर्सिटी में चला जाएगा, और यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो 4 साल. और 4 साल की डिग्री में क्या है कि उसमें एक्सिट पॉलिसी है. 1 साल बाद मान लीजिए अगर स्टूडेंट को लगता है कि भाई मैंने इतना काम कर लिया, तो 1 साल में हम उस स्टूडेंट को इतना परफेक्ट कर दें, उसको इतनी स्किल की जानकारी दे दें कि वो एक सर्टिफिकेट लेकर के मार्केट में जाए और उसको जॉब मिले.
अगर उसकी पढ़ने की कैपेसिटी और ज्यादा है तो वो 2 साल पढ़ ले, डिप्लोमा ले ले। अगर उसकी पढ़ने की कैपेसिटी और ज्यादा है तो डिग्री ले ले 3 साल की, और ज्यादा है तो ऑनर्स ले लेगा 4 साल। अब इसी तरह से सरकार ने क्या है कि जो 5+3 है, जो लोअर लेवल पर भी सरकार ने क्या किया है कि जो स्टूडेंट है उसको एक तो मल्टीलिंगुअल सिस्टम लाया, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब मान लीजिए जैसे साउथ का स्टूडेंट है, वो कहता है कि भाई मैं तो साउथ की जो लैंग्वेज है उसमें ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में स्टूडेंट पढ़ेगा, और रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने के बाद उसको 2 लैंग्वेज और, एक अल्टरनेट लैंग्वेज से फॉर एग्जांपल वो इंग्लिश ले लेता है, एक दूसरी लैंग्वेज वो हिंदी ले, संस्कृत ले, कोई और अलाइड लैंग्वेज ले तो वो लेगा। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो पूरे कंट्री को बाइंड करेगा, और जो हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं उन भाषाओं को सब लोग सीख लेंगे। अब नॉर्थ का आदमी है, हिंदी भाषी है, हिंदी भाषी को दूसरी भाषा सीखने का भी मौका मिलेगा, तो वो कनेक्ट होगा। तो ये एक राष्ट्रीय भावना भी है इसके अंदर जो। और एक चीज जो ब्यूटी है इसकी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसकी एक सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि स्टूडेंट का जो 8th क्लास तक है उसकी एग्जामिनेशन बेस्ड सिस्टम नहीं होगा, उसको फोबिया नहीं होगा। 8th क्लास में ही जाके उसका एग्जामिनेशन होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन। अब उसको लर्निंग बेस्ड है, क्रैमिंग बेस्ड नहीं है, लर्निंग बेस्ड सिस्टम। तो जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। वाइस चांसलर से डिस्कस हुई है, 3 बार वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, और फॉर्चुनेटली उन तीनों वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में मैं रहा हूँ, और उनमें एक्टिवली मैंने डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। और जो सजेशंस आए, करीब 2 लाख सजेशन लोगों ने दिए। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक जी, हेड्स अप टू हिम दैट के उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया, और उन्होंने इतनी इंटरेक्शन की, इतना कम्युनिकेशन उनका इफेक्टिव था कि वो सभी से उन्होंने कम्युनिकेट करके उस पॉलिसी में जो भी चीज़ें चेंज हो सकती थी, जो बदलाव होने थे, वो बदलाव उन्होंने उसमें लाए। और पॉलिसी आज की डेट में बिल्कुल एक ऐसे डॉक्यूमेंट की स्टेज में है कि ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। ये तो एक छोटी छोटी बात मैंने आपको कह दी जो पॉलिसी की है। जो 4 साल की डिग्री है उसमें यह है कि अगर 3 साल की आप करेंगे तो नॉर्मल डिग्री होगी आपकी, और 4 साल की आप करेंगे तो ऑनर्स होगी, और उसके बाद अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो पीजी अगर किसी ने 4 साल की डिग्री की है तो 1 साल की होगी उसमें, उसके बाद वो रिसर्च में जाएगा। तो और रिसर्च के लिए भी क्या है कि उन्होंने एक फंड बना दिया, और फंड बनाने के बाद उसमें भी क्या है कि सोशल रेलिवेंस की जो चीजें हैं उन्हीं पर रिसर्च है। अब ये नहीं है कि मैं रिसर्च जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, जो मैं चाहता हूँ, रिसर्च में उसी में होगा जिसकी सोसाइटी को जरूरत है, जिसकी नेशन को जरूरत है, जिसकी राष्ट्र को जरूरत है। क्योंकि हमारा जो कंट्री है 139 करोड़ की पॉपुलेशन, और 139 करोड़ की पॉपुलेशन में हमारी जो वैज्ञानिक सोच है, जो वैज्ञानिक हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो वर्ल्ड लेवल पर जो पेटेंट्स हैं, ओरिजिनल रिसर्चर्स, वो बहुत कम, 2% कुल आता है। तो इस जो पॉलिसी बनाई गई है, इस पॉलिसी में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि जो ओरिजिनल रिसर्च है, सोशली रेलिवेंट है, जो राष्ट्र के निर्माण में सहायक है, उस रिसर्च पर ही फोकस होगा, और उसी रिसर्च पर फंडिंग दी जाए, और उसी रिसर्च को प्रमोट किया जाए। तो मेरे अपने हिसाब से क्या, मैं तो कहता हूँ कि सारे वाइस चांसलर्स के साथ जो बात हुई है, और जो एकेडमिशियंस हैं, एकेडमिशियंस के हिसाब से पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिसी बहुत अच्छी है, प्रोवाइडेड इट इज राइटली इम्प्लीमेंटेड। Execution is a challenge, and this execution is a challenge before the government, before the institutions, before the primary institutions, before the public, before the parents, before the society, before the nation as a whole. And if you will implement it rightly, correctly, honestly, sincerely, there is no doubt that we will be able to beat the world,
कोई इसमें शक ही नहीं है कि हम दोबारा से विश्व गुरु ना बने। इस पॉलिसी को अगर राइटली इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो विश्व गुरु हिंदुस्तान दोबारा से बन जाएगा, कोई उसमें संदेह नहीं। आई होप दैट आई हैव क्लियर्ड द पॉइंट। यस सर, ऑफ कोर्स, एंड वी होप दैट टू कि बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। सर, जैसे आपने अभी बदलाव के बारे में बात करी, सो अगर आप थोड़ा अच्छे डिटेल से बता सकेंगे कि जैसे आपने इसके बेसिस तो बताए कि ट्रेडिशनल मेथड से ये वाली जो पॉलिसी कैसे डिफरेंट है, अगर डिफरेंशिएट करना हो तो। देखिए, जैसे इन्होंने कहा है कि प्राइमरी स्कूल से ही हम स्किल ओरिएंटेड कोर्स चलाए। इन्होंने करीब 33 कोर्स प्राइमरी लेवल पर स्किल ओरिएंटेड छांटे हैं। उसमें एग्रीकल्चर के भी है, क्राफ्ट भी है, कारपेंटिंग भी है, वेल्डिंग भी है, और सभी तरह के कोर्सेज को इन्होंने दिया। लेकिन मेरा अपना मानना ये है, और बहुत सारे लोगों का मानना ये है, कि इनको और बढ़ाया जाना चाहिए। खाली जो 33 कोर्स इन्होंने लिए हैं स्किल ओरिएंटेड, दे शुड बी मोर। और जब हम शुरू से ही स्टूडेंट को स्किल की तरफ ले जाएंगे, कारपेंटिंग सिखाएंगे, उसको प्लम्बिंग सिखाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी सिखाएंगे, कुकिंग सिखाएंगे, नर्सरी सिखाएंगे, हॉर्टिकल्चर सिखाएंगे, एग्रीकल्चर सिखाएंगे, इंजीनियरिंग की बेसिक चीजें सिखाएंगे, कंप्यूटर सिखाएंगे, सब चीजें सिखाएंगे, तो ये लर्निंग बेस्ड पर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। अब ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड को करने के लिए देखिए जो चैलेंज यहाँ पर आता है, अब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से पूछा है ये, कि जो स्टूडेंट है अब उसको जब वो प्रैक्टिकल खुद करेगा, DIY, डू इट योरसेल्फ, दिस इज द बेसिस ऑफ दिस पॉलिसी। जब वो खुद करके देखेगा, अब मैं मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल है, मैं इसको मोबाइल है मेरे पास, मैं जब इस मोबाइल को खुद चला करके देखूंगा कैसे चलता है, कैसे इसमें व्हाट्सएप जाता है, कैसे इसमें फेसबुक आती है, कैसे इसमें इंटरनेट चलता है, तो मुझे ये याद है। अगर मैं थियोरिटिकली आप मुझे बताएंगे कि सब मोबाइल से वहां से आइकन खोल लीजिए, वहां से ये कर लीजिए, वहां से फेसबुक कर लीजिए, वहां, तो मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इस पॉलिसी का जो ब्यूटी है वो ये है कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड में जब स्टूडेंट खुद करेगा, अब खुद करने के लिए जो टीचर हैं पहले उनको स्किल होना पड़ेगा, और जब टीचर को आएगा, इंस्ट्रक्टर को, एजुकेटर को जब वो चीज आएगी, तभी वो उसको कम्युनिकेट कर पाएगा। दूसरी बात क्या है कि अब जो जमाना है वो टीचिंग वाला जमाना नहीं, कि जो टीचर है क्लास में गया और उसने पढ़ा दिया, ब्लैक बोर्ड पे दे दिया और स्टूडेंट ने समझ लिया और स्टूडेंट को समझ, नो। अब क्या है कि आपको संवाद करना होगा स्टूडेंट से डायरेक्टली, स्टूडेंट को बताना होगा कि भाई, क्योंकि स्टूडेंट इतना स्मार्ट है आज की डेट में, इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर बहुत सारे इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर वो आज 4 साल के बच्चे को भी आप देख लीजिए, 4 साल का बच्चा भी मोबाइल लेकर के उस पर अपने यूट्यूब को ढूंढ लेता है। मेरी ग्रैंड डॉटर है, वो भी 4 साल की भी नहीं हुई है, और वो उसको मोबाइल उसके हाथ में आया और वो तुरंत लेकर के वो यूट्यूब ढूंढ करके उस पर अपने मतलब की चीजें जो है सुनना शुरू कर देती है। जब मैं 4 साल का था तो मुझे कुछ पता नहीं होता था सारी चीजें। अवेयरनेस अब स्टूडेंट के अंदर इतनी है कि आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते, आप उसको 1 घंटा ऐसे नहीं चला सकते, वो सब चीजें तो वो जाने हुए हैं। अब आप उसको दिखाना है आपको कि साहब इस लेवल पे ये चीज कहाँ से कैसे होगी, तो आपको खुद आनी चाहिए। तो टीचर जो इस समय है उनको भी लर्न करना पड़ेगा, वो लर्निंग साथ में बैठ करके आप लर्न करेंगे स्टूडेंट के साथ। जब आप लर्न करेंगे तो आप उसको डिलीवर कर पाएंगे। तो अब टीचिंग की जगह को लर्निंग। अब देखिए कोरोना पीरियड में क्या है, कोरोना पीरियड ने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया है, पूरा वर्ल्ड की हर चीज चेंज कर दी। अब आप न्यूज पर मेरा इंटरव्यू वहां से ले रही हैं, आप अपने दफ्तर में, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ। पहले आज से 20 साल पहले अगर मुझे आपके यहाँ इंटरव्यू देना था तो मुझे आपके ऑफिस में आना था, वहां में आता, मेरे टाइम भी वेस्ट होता, आने जाने में भी होता, सारी चीजें होती। सो कंफर्ट जोन, अब इतना कंफर्ट जोन क्लियर कर दिया है। एजुकेशन में अगर मैं देखूं, अगर लूं, तो अब सारी यूनिवर्सिटी, सारे इंस्टीट्यूशंस इस कोरोना पीरियड के अंदर ऑनलाइन आ गए।
ऑनलाइन एजुकेशन, शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हमने 17 मार्च 2020 को, जब प्राइम मिनिस्टर जी ने 13 मार्च को फ्लाइट्स रोकी थी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोकी थी, तो मैं तो 45 साल से प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी हूँ, मुझे तो पता था कि अब ये कोरोना आ गया है तो ये रहेगा, यहीं रहेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो मुझे खूब याद है कि 17 मार्च को मैंने पूरे फैकल्टी मेंबर्स की यहाँ अपने लॉन में मीटिंग बुलाई थी और सबसे मैंने कहा था भाई तैयार हो जाओ ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो बोले क्या कह रहे हैं आप? मैंने कि मैं आपसे सही कह रहा हूँ, आप कल से, आज से ही आप बच्चों को जो है ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दीजिए, लेक्चर बनाना शुरू कर दीजिए, तैयारी कर दीजिए। बोले क्यों? वे तो मैंने कि ये अब कोरोना आ गया है, यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। सही बोला। अब आप ये देखिए कि सारी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन टीचिंग कर रही है। जो ऑनलाइन में आगे, हमारी यूनिवर्सिटी ने तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी किया है। सरकार ने कह दिया था कि भाई आप इनको प्रमोशन दे दीजिए, सरकार ने फॉर्मूले बता दिए थे, लेकिन शोभित यूनिवर्सिटी ने किसी भी स्टूडेंट को बिना एग्जाम के प्रमोशन नहीं किया। शोभित यूनिवर्सिटी ने सभी स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन लिए हैं। हमारे यहाँ 3 एग्जामिनेशन होते थे एक सेमेस्टर में, E1, E2, E3, हमने तीनों लिए हैं। किसी को बिना एग्जामिनेशन के प्रमोट नहीं किया। ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया, ऑनलाइन टीचिंग की है। अब कुछ जगह क्या है, तो कुछ यूनिवर्सिटी ने कहा साहब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेते, आई डिसएग्री विद दैट। आपने ऑनलाइन पढ़ाया तो है नहीं, अब आप ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए तैयार हैं आप, और पढ़ाने के टाइम पर आपका ऑनलाइन सिस्टम कहाँ गया था भाई? आप पढ़ाते भी उनको, आप अगर ऑनलाइन पढ़ाते तब आपका अधिकार है उनसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने का, लेकिन आपने जो पढ़ाया नहीं तो ऑनलाइन एग्जाम लेने का आपको अधिकार नहीं है। तो अब जो सिस्टम है, ये नटशेल में मैं बताऊं, पूरा का पूरा सिस्टम ये स्किल बेस्ड है, लर्निंग के ऊपर बेस्ड है, क्रैमिंग के ऊपर बेस्ड नहीं है। एक शब्द में मैं अगर आपको करूं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, दिस इज बेस्ड ऑन लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, थिंकिंग। इससे क्रिएटिविटी निकल करके आएगी स्टूडेंट, जो हमारी सोच है। अब मैं अगर सोचूं कि नया मैं अंग्रेजी लैंग्वेज में सोच लूंगा, डिफिकल्ट। नया सोचने के लिए मुझे मेरी मदर टंग आनी चाहिए, मदर टंग में ही मैं नई बात सोच सकता हूँ, मदर टंग। सो दिस एजुकेशन पॉलिसी व्हिच हैज बीन मेड with the so many critical decisions, discussions, और मैं समझता हूँ कि कोई भी पॉलिसी आज तक पूरे वर्ल्ड में इतना डिस्कस करने के बाद नहीं, क्योंकि इसमें इतना डिस्कशन हुआ है, इतना लोगों के कमेंट्स आए हैं, इतने लोगों के कमेंट्स को, उनको सुझाव को लिया गया है, और पूरी एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि इट इज प्योरली बेस्ड ऑन जॉब ओरिएंटेशन। तो पूरी आपकी सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड। तो नटशेल में स्किल ओरिएंटेड है, लर्निंग के बेस पर है, थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है, क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड है, और नई बात को लाने के लिए है, इनोवेशन के ऊपर बेस्ड है, और सोशल रेलिवेंस के ऊपर बेस्ड है, नेशनल नीड्स के ऊपर बेस्ड है, लोकल नीड्स के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं बात करूं कि सरकार कहती है कि जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हमारा गन्ना से ज्यादा प्रभावित है, तो सरकार का कहना है कि आप गन्ना पढ़ाइए ना, उसमें गन्ने की मिल पढ़ाइए, गन्ना कैसे पैदा करेंगे उसको पढ़ाइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग गन्ने की पढ़ाइए। तो मैं तो बहुत दिन से ये बात कह रहा हूं कि अगर हम इस पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को और इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करके अगर करें तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो दिस इज ए वंडरफुल पॉलिसी एंड एवरी एजुकेशनिस्ट इज सपोर्टिंग इट at every level. The only doubt what I also have, that is the education and implementation. सो इतने डिस्कशन के बाद जैसे आपने बोला कि ये बना है, तो आई एम श्योर इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, जो आपने बहुत सारे स्टेट भी करे फॉर द नेशन, फॉर द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो सर मैं चाहूँगी कि आप बताएं स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है, जो आपने आई थिंक थोड़े पॉइंट्स हाईलाइट भी करें, ऑल्सो जो बाकी इंडस्ट्रीज है उनके लिए भी क्या ये पॉलिसी बेनिफिट लाएगी? अब देखिए, जैसे
और इस पॉलिसी का एक बेसिस ये है कि आप जो भी पढ़ाएंगे, जो भी कुछ करेंगे, इंडस्ट्री से कनेक्ट करेंगे। शोभित यूनिवर्सिटी ने इसको इम्प्लीमेंट इस साल से कर दिया और हमने अभी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर और इंजीनियरिंग के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर हमने इसको एक स्पेशलाइजेशन बनाई और हमने इंडस्ट्री से कनेक्ट किया। हमारे यहाँ जिससे स्टूडेंट जब पढ़ेगा तो वो 40% क्लासरूम टीचिंग है और 60% उसका प्रैक्टिकल बेस्ड टीचिंग। वो इंडस्ट्री में जाकर ही सीखेगा। अब उसको कंप्यूटर सीखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी है, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग सीखनी है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो इंडस्ट्री है उससे हमारी टाई अप है, उसके पास ही जाकर के सीखेगा। बायोटेक्नोलॉजी में हमने मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे रखा है स्पेशलाइजेशन, और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हमने रखा है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें जब स्पेशलाइजेशन हमने रखे हैं, तो जो स्पेशलाइजेशन के जो इक्विपमेंट है वो हॉस्पिटल में जाकर ही सीखेगा, वहीं जाकर के वो करेगा प्रैक्टिकल। तो जब तक यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस और जो इवन मैं तो कहता हूँ प्राइमरी स्कूल्स को, प्राइमरी स्कूल को जैसे मान लीजिए काव पढ़ानी, तो काव अगर पढ़ानी है तो टीचर बस में स्टूडेंट्स को लेकर के जाए, काव के फार्म पे जाए और काव के फार्म पे ही जाकर के उसको काव पढ़ाए कि भाई ये गाय है, इसकी ये 4 पैर हैं, इसके ये 2 आंख हैं, इसके 2 सींग हैं, ये दूध ऐसे देती है, ये गोबर है इसका गोबर के ये बेनिफिट है, ऐसे इसके फायदे। मैं जब जर्मनी में था 1985 में, तो एक छोटी सी बात आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ सभी लोगों से। तो जब मैं पहुंचा तो वहाँ जर्मन लैंग्वेज मुझे सीखी। अच्छा, मैं टीचर था तो अब टीचर को फिर लैंग्वेज सीखनी है, क्योंकि बिना लैंग्वेज के हम वहाँ पे सर्वाइवल हमारा मुश्किल था, हम नहीं रह सकते। तो जब हम पहले दिन क्लास में गए तो टीचर हमारी आई और वो टीचर भी होती कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती। अब ना उसको अंग्रेजी आती थी, ना उसको हिंदी आती थी, तो उसको खाली जर्मन आती थी। हमको जर्मन नहीं आती थी, ठीक है। तो जब वो आई और आकर के उसने एक पासपोर्ट, सबसे पहला वो था जो पासपोर्ट उसे पढ़ाना था, तो पासपोर्ट अपने साथ लेकर के आई। वो कहते दस इज पास, दस इज पाक। अब वो दिखा करके हमको हर चीज बता रही है कि हमारी समझ में आ रहा था कि ये पासपोर्ट है, और हमारी समझ में आ रहा था कि इसका ये पहला पेज है। लेकिन जो वो बोल रही थी, उसने 2 घंटे उसने क्लास ली हमारी, 2 घंटे उसने जर्मन लैंग्वेज के अलावा कोई शब्द नहीं बोला, और उसी में हमें सिखाया। हमको जब वो ले गए फार्म हाउस पे सिखाने के लिए कि भाई वाइन कैसे बनती है सब, तो वो जर्मन लैंग्वेज वाला टीचर था। अंग्रेजी उसको आती भी थी, हमें पता था कि वो इंटरनेशनल उसमें ले गए थे हमको, और हमने कोशिश भी करी कि वो अंग्रेजी में कुछ हमसे बोल बाल ले, कुछ बता दे। उसने जर्मन ही बोलता रहा जब तक हमने उसकी बात को समझ नहीं ली। हम अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो अलग इश्यू है। हम अपनी बात उसको अंग्रेजी में ही बोलते रहे कि हमने समझे, और वो समझता रहा, लेकिन वो अंग्रेजी में नहीं बोला, वो जर्मन में ही बोलता। और 4 महीने बाद हम लोग इतने परफेक्ट हो गए थे कि वी वर एबल टू कम्युनिकेट विद द पब्लिक। हम अपनी बात जर्मन लैंग्वेज में कहने में, जर्मन लैंग्वेज में समझने में। तो ये जो चीजें हैं, हमको टीचर्स को ये बात समझनी पड़ेगी, टीचर को मेहनत करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री है, अब इंडस्ट्री के अंदर हमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में हमें मान ले कोई इक्विपमेंट है, हमें जो ग्लूकोज मीटर है, ग्लूकोमीटर है, वो देखना है, या हमें सीटी स्कैन देखना है। तो सीटी स्कैन की पहले थ्योरी हम पढ़ाएंगे यहाँ, और थ्योरी पढ़ाने के बाद वो स्टूडेंट जो है वो सीटी स्कैन मशीन पे जाएगा और सीटी स्कैन मशीन पर वो उसको करेगा, देखेगा, तब उसको अंडरस्टैंडिंग आएगी, समझ में आएगी। तो ये जो जब तक वही इंस्टीट्यूट अब सर्वाइव करेंगे, वही यूनिवर्सिटी सर्वाइव करेंगी जो इंडस्ट्री से टाई अप करेंगे, जिनका इंडस्ट्री से अलाइनमेंट हो जाए। जब आपकी प्रैक्टिकल, आपको बैंकिंग सिस्टम चलाना है, बैंकिंग सिखाना है, तो आपको जो है स्टूडेंट को बैंक में जाकर के 1 हफ्ते, महीने भर वहीं पे ट्रेनिंग देकर के बैंकिंग सिस्टम उसको वहीं समझना होगा, वहीं सीखना होगा। पोस्ट ऑफिस का सिस्टम सीखना है तो पोस्ट ऑफिस में जाए, वहां बैठे, देखे। That is the system what the new education policy says.
एग्रीकल्चर सीखनी है आपको तो एग्रीकल्चर किसान के साथ खेत में जाइए। किसान जो है वो एग्रीकल्चर का जो टीचर है जो क्लास में पढ़ाता है, बहुत सारी चीजें किसान उससे ज्यादा जानता है। जब हम किसान के पास जाते हैं, खेत में जाते हैं, तो हमें प्रैक्टिकल उसकी डिफिकल्टी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब वो बताता है तो फिर हम उसको बताते हैं भाई इसको तुम इसकी जगह ऐसे करो तो वो फिर हमको बताता है नहीं साहब मैंने ऐसे नहीं ऐसे करके देखा तो अच्छा है। तो ये जो चीज है हमें बिल्कुल प्रैक्टिकली कनेक्ट करना है। थ्योरी अच्छा, जब अब जैसे स्वयं पोर्टल है, सरकार ने अब ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल आ गए। 40% तो सरकार ने कह दिया है कि साहब 40% टीचिंग तो जो है आप ऑनलाइन कर लीजिए। अप टू 40% टीचिंग ऑनलाइन आप कोर्सिंग करें। जब ऑनलाइन आप करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तो एक टीचर्स के ऊपर जो निर्भरता है वो भी कम है। और फिर अब ऑनलाइन है और किसी भी चीज से, अब जैसे मान लीजिए बेस्ट टीचर जो है यूएस में बैठा हुआ किस सब्जेक्ट का, तो मैं उससे जोड़ूंगा अपने स्टूडेंट्स को, उससे टाइम लूंगा, अपॉइंटमेंट लूंगा कि भाई आप 1 घंटे हमारे क्लास को ले दीजिए ऑनलाइन आप। अब उसको मैं देखने के बाद जो मेरी प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियां हैं उससे जाकर के फिर मैं प्रैक्टिकल उसका कर रहा हूँ। तो अब जो पॉलिसी है उसके अंदर इंडस्ट्री वाला यूनिवर्सिटी में आए, यूनिवर्सिटी वाला इंडस्ट्री में आए। मैंने तो प्रपोजल दिया था, लिखकर भी सरकार को भेजा, और मैं आपके माध्यम से सरकार का भी ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, इतना बड़ा आपका माध्यम है, कि सरकार को यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को कंपलसरी कर देना चाहिए कि साल में 2 महीने वो एक इंडस्ट्री में रहेंगे, और इंडस्ट्री वाले को कंपलसरी कर देना चाहिए कि वो साल में कम से कम 1 महीना यूनिवर्सिटी में आएंगे, यूनिवर्सिटी में रहेंगे। जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी का, जब तक बॉन्डिंग नहीं होगी, तब तक ये दोनों कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इंडस्ट्री वाला हमसे हेजिटेट करता है, इंडस्ट्री वाला हमसे खुलता नहीं है, इंडस्ट्री वाला नहीं चाहता कि भाई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मेरे यहाँ आए, जो मैं कर रहा हूँ उसको सीखे, उसको पता चले कि मैं अपनी इंडस्ट्री में कितनी क्वालिटी मेंटेन कर रहा हूँ, उसको नहीं पता चलना चाहिए। ये चीज हमको एक सीखनी पड़ेगी। जो इंडस्ट्री का मैंडेट है, जो इंडस्ट्री की सीक्रेसी है, वो भी हमको एक सीखनी पड़ेगी। मैं लिवरपूल में था 93-94 में 1 साल रहा, और लिवरपूल में जब मैं था तो मैं काम कर रहा था पेपर इंडस्ट्री के ऊपर। तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि भाई आप पेपर इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं। हमने एक नई प्रोसेस उस समय डेवलप की थी कि अगर हम पेपर इंडस्ट्री के पेपर के अंदर एंजाइम पहले से डाल दें तो क्लोरीन की जो परसेंटेज है वो हम सेव कर सकते हैं। क्लोरीन की परसेंटेज सेविंग वाज नॉट द एम ये था कि क्लोरीन जब हम यूज करते हैं तो उससे एनवायरमेंट के अंदर जो टॉक्सिन सब्सटेंस आते हैं उनकी कंसंट्रेशन हमें कम करनी है, जिससे कि जो एफ्लुएंट है उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाए। तो मेरे प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि भाई आप इंडस्ट्री के अंदर जाइए और 1 हफ्ते वहां रहिए। इंडस्ट्री से उसने बात कर ली, उसने मुझे, इंडस्ट्री वाले ने 1 हफ्ते मुझे गेस्ट हाउस दिया, मैं इंडस्ट्री में रहा। जो मेरा अपना एक्सपर्टाइज थी एंजाइम्स वाली, वो मैंने उनको बात बताई। इंडस्ट्री वालों की समझ में आई कि हाँ भाई अगर हम एंजाइम्स इसमें डाल देंगे तो बेसिकली लॉजिकली सीम्स गुड, सीम्स लॉजिकल साउंड। मैंने भी उनके सिस्टम को देखा कि भाई जो क्लोरीन वो उसमें डालते हैं, हम टेक्स्ट बुक में तो पढ़ाते हैं साहब 4%, 5%, 6% हम डालते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि प्रैक्टिकली वो 6% से ज्यादा डालते हैं, क्योंकि उनको तो ब्लीचिंग व्हाइट पेपर चाहिए। व्हाइट पेपर नहीं होगा तो मार्केट में बिकेगा कैसे। और फिर जो उनका एफ्लुएंट आता था, एफ्लुएंट में जो कंसंट्रेशन होती थी वो बताते थे कुछ और निकलती थी कुछ और। तो उन्होंने, तो हमारा भी एक बेसिक एथिक्स ये था कि जो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं हम उसको हाईलाइट ना करें, सीक्रेसी रखें। हमने उनको बताया कि भाई इसी चीज को आप ऐसे ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं, आप इस लेवल पे ला सकते हैं जो लेवल गवर्नमेंट का। उनकी बात समझ में आई। हमने कहा भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, खाली इतना इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी इस स्ट्रक्चर को इतना करके ऐसे मॉडिफाई कर लीजिए। तो वो देवर इम्प्रेस्ड, और उन्होंने फिर हमारी यूनिवर्सिटी को ही प्रोजेक्ट दिया जहां मैं था। उनसे कहा कि भी हम इस पर फर्दर काम करना चाहते हैं, फर्दर आप इसको हमारी प्रोसेस को। तो इंडस्ट्री आपसे जुड़ना चाहती है, और लेकिन सवाल क्या है कि हेजिटेशन जो है, हम इंटरेक्शन जो नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी वाला अपनी मैं लिए बैठा है, साहब मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैं क्यों इंडस्ट्री में जाऊं, मैं क्यों इससे बात करूं, ये तो पीजी है खाली।
ये तो खाली पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजर है, इसको तो खाली पीएचडी की डिग्री भी नहीं है। लेकिन भाई उसके पास 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है जो मेरे पास प्रैक्टिकल नहीं है। इंडस्ट्री वाला ये सोचे कि साहब मैं तो 15 साल 20 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, इससे एक प्रोफेसर को क्या पता है, ये तो थ्योरी डालेगा, किताब खाली इसकी नहीं भाई। वो थ्योरी किताब वाला जो है उसे आज की टेक्नोलॉजी पता है, वो ग्लोबल कंटेक्स्ट में है। तो हमें ये जो गैप है, ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो दोनों में मिसट्रस्ट है, वो हमें खत्म करना होगा। और सरकार को जो है इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज को पास लाना होगा। उसके लिए मेरा एक सुझाव आपके बड़े प्लेटफॉर्म से, जिससे फॉरेन कंट्रीज के अंदर है, मैं आपके तरफ से आपके प्लेटफॉर्म से देना चाहता हूँ। विदेशों में आप जाएं तो विदेशों में एक सिस्टम है, कोई भी इंडस्ट्री है जो उसका क्वालिटी कंट्रोल, उसकी क्वालिटी कंट्रोल यूनिट उसकी अपनी है। इंडस्ट्री की तो अपनी क्वालिटी कंट्रोल यूनिट है ही है, लेकिन हर इंडस्ट्री के साथ उन्होंने यूनिवर्सिटी जोड़ रखी है। जिससे मान लीजिए फूड है, शोभित यूनिवर्सिटी फूड इंडस्ट्री में काम कर रही है, हम फूड टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ की फूड इंडस्ट्री जितनी भी होंगी, भाई आप तो क्वालिटी अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट शोभित यूनिवर्सिटी में भी आप एक स्टूडेंट को या अपना सैंपल दीजिए और वहां पे सैंपल टेस्ट करें। हमने भी उसको इंडिपेंडेंटली टेस्ट किया। अब उससे दो फायदे होंगे, एक तो ये होगा कि इंडस्ट्री को फायदा होगा कि उसका एक दूसरी जगह टेस्टिंग होगा। यूनिवर्सिटी को फायदा क्या होगा कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है वो इंडस्ट्री से कनेक्ट हो गया और जो इंडस्ट्री का पैरामीटर है, इंडस्ट्री के पैरामीटर पे उसने क्वालिटी उस फूड प्रोडक्ट की चेक कर ली। अब जब वो स्टूडेंट मेरी यूनिवर्सिटी से निकल के जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, तो उससे पता है कि भाई ये फूड की क्वालिटी इंडस्ट्री वाला कैसे टेस्ट करता है, मैं कैसे टेस्ट करता हूँ, और उनको इंडस्ट्री वाले को क्या चाहिए। तो गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम है एडल्ट्रेशन की, या गवर्नमेंट की जो चेकिंग की प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो। सरकार के ऊपर भी बर्डन घटेगा, इंडस्ट्री के ऊपर भी बर्डन घटेगा, और यूनिवर्सिटी भी फायदे में रहेगी। तो इस तरह के कनेक्ट जो है हमको बैठ करके डायलॉग करना पड़ेगा। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कमिश्नरी लेवल पर, लोकल लेवल पर एक ऐसी हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी वाले दोनों साथ बैठ करके बात कर सकें। एक प्लेटफॉर्म सरकार को डेवलप करना पड़ेगा, सरकार को इसमें लीड लेना पड़ेगा, सरकार को दोनों के लिए मैंडेटरी करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के लिए मैंडेटरी करें, इंडस्ट्री के लिए भी मैंडेटरी करें, तब जाकर के कनेक्ट होगा। और जब एक बार मैंडेटरी करके आप अब जैसे मान लीजिए आपको मैंडेटरी हो गया, आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात करें, मुझे मैंडेटरी हो गया मैं न्यूज चैनल से बात करूं, ठीक है। एक बार हमने आपको मैंडेटरी करके हम दोनों पास आ गए, और कल से जब आप देखेंगे कि भाई यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के मुझे ही फायदा हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं न्यूज चैनल के साथ मिल रहा हूँ, मुझे ही फायदा हो रहा है, तो कल से हम दोनों को, फिर सरकार को हट जाएगी सरकार बीच में से, फिर हम दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो सरकार को पहले लीड लेनी पड़ेगी, सरकार को इसमें कोई एक ऐसा लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा जिसमें मैंडेटरी करके सरकार लाए। अब हमने सरकार ने क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बात पर नहीं बात करती। न्यू एजुकेशन कहती है आप जोड़िए, आप इंडस्ट्री मेरे से नहीं जोड़ना चाहती, तो मैं इंडस्ट्री से कैसे जोड़ूंगा, या मैं इंडस्ट्री से नहीं जोड़ना चाहता। तो इनिशियल स्टेज पर सरकार को सामने आकर के इसको मैंडेटरी करना पड़ेगा, और मैंडेटरी करने के बाद जब दोनों में अंडरस्टैंडिंग एक कुछ लेवल तक बन जाएगी, तो फिर सरकार को जरूरत ही नहीं है, फिर चीज चल निकलेंगी। तो फॉरेन पैटर्न पर हम, आपको मान लीजिए कोई सर्वे कराना है, आपको अपनी न्यूज चैनल का सर्वे कराना है कि भाई आपकी न्यूज चैनल कैसी चल रही है, तो आप एक अपना, तो आपने दल लगाई रखा है, आपका तो अपना सर्वे का पार्ट है ही है। आपने एक यूनिवर्सिटी को भी कह दिया कि भाई हमारे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, एजुकेशन के स्टूडेंट हैं या कोई हैं, हमारे आप ये सर्वे करा, ये हमारा क्वेश्चनएयर है। हमने वो क्वेश्चनएयर लिया, हमने अपने स्टूडेंट्स को दे दिया, भाई ये आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, जाइए आप सर्वे करके लाइए। अब आपके पास दो जगह से डाटा हो गया, एक आपका अपना डाटा है, एक हमारी यूनिवर्सिटी का डाटा, दोनों को आपने बैठ करके देखा। भाई आपके लोग भी आपको डिच कर सकते हैं, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे डिच कर सकते हैं, दोनों बैठेंगे बात करेंगे तो दोनों का काउंटर चेक होगा, आपको रियल पिक्चर निकल के आएगी। मेरा स्टूडेंट ट्रेन हो गया, आपका सिस्टम ठीक हो गया,
दोनों के लिए बेनिफिशियरी है। इस तरह की सोच, इस तरह की चीजें हमें डेवलप करनी पड़ेगी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो सरकार ने ला दी, लेकिन जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, अपना माइंड सेट चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे, आपस में साथ बैठेंगे नहीं, तब तक पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। कोई भी चीज है, आप कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया है, हमारे रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन वेयर वी फेल इन एग्जीक्यूशन। हमारी गवर्नमेंट ने मास्क कहा कि भाई सब मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, सेकंड लेयर क्यों आ गई भाई? अगर हम मेंटेन करते तो नहीं आती, अब मेंटेन नहीं करोगे तो तीसरी भी आएगी, उसको कौन रोक लेगा? भाई कोरोना है, वायरस है, वायरस तो रहेगा यहाँ, कहीं नहीं जाने वाला है। तो आप, बहुत सीधी सी बात है, एग्जीक्यूशन इज ए प्रॉब्लम। एग्जीक्यूशन अगर हम सही कर दें, कानून तो हमारा बहुत बढ़िया बना हुआ है, कानून, लेकिन कानून का एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, करोड़ों केस आपके कोर्ट में पड़े हुए हैं। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि साहब इतने दिन में डिसीजन हो जाना चाहिए। भाई कैसे होगा? एग्जीक्यूशन नहीं है। तो एग्जीक्यूशन इज ए प्रॉब्लम। पॉलिसी है, बहुत अच्छी बात है, बट लेट ऑल यूनाइट टुगेदर टू एग्जीक्यूट इट ऑनेस्टली, सिंसियरली, फेथफुली। सो सर, जैसे अभी आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि एक कनेक्शन बिल्ड करना अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द इंस्टीट्यूशन। ऑल्सो जैसे अभी हमने बेनिफिट्स की बात करी, आपने बहुत सारे अभी वैसे चैलेंजेस हमें बताए हैं, बट अगर आप थोड़ा ब्रीफली बता सकते हैं द चैलेंजेस जो एक प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस है वो फेस कर सकते हैं। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आप, रियल पॉइंट पे आए हैं। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि मान लीजिए हमने कहा कि 7 स्किल तो हमने बना दी, 30, 35, 40, 50 कितनी बना दिया, इवन 100 स्किल आप बना सकते हैं। लेकिन क्या एवरी इंस्टीट्यूशन उस 100 स्किल के अंदर अपनी लेबोरेटरी तैयार कर सकता है? नहीं। क्या एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी प्राइमरी स्कूल उन स्किल्स के ऊपर अपने इंस्टीट्यूशन को बना सकता है? नहीं। चलिए मैं मानता हूं आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना ली, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, हालांकि वो संभव नहीं है, ठीक है, आपने बना ली, आप टीचर कहां से लाएंगे, एक्सपर्ट्स कहां से लाएंगे? वो तो लिमिटेड हैं। मेरठ में ही अगर मैं देखूं तो मेरठ में कितने एक्सपर्ट्स होंगे साथ जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा सकते हैं? मेरठ में कितने एक्सपर्ट होंगे जो बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग करा सकते हैं? मेरठ में कितने एक्सपर्ट होंगे जो बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं? मेरठ में कितने एक्सपर्ट होंगे जो माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं? मेरठ में कितने एक्सपर्ट होंगे जो रेडियोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं? और स्टूडेंट्स होंगे आपके, से फॉर एग्जांपल 5000, हाउ दे विल बी एबल टू टीच? तो रिसोर्स शेयरिंग, जब तक हम रिसोर्स शेयरिंग नहीं करेंगे तब तक ये एजुकेशन पॉलिसी कागजों में ही रहेगी। मैं आपके प्लेटफॉर्म से सरकार को भी चेता रहा हूँ, जनता को भी चेता रहा हूँ और पब्लिक को भी बताना चाहता हूँ। हमने जैसे शोभित यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे स्पेशलाइजेशन नहीं रखे, हमने कर्टेल कर दिए। हमने हर ब्रांच के अंदर खाली 8 स्पेशलाइजेशन रखे और हमने और बहुत सारे कोर्सेज बंद कर दिए। ऐसी हम खाली उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं जिन पर हमारी एक्सपर्टाइज है, जिनके पास, जिन ब्रांचेज के अंदर हमारे पास फैकल्टी है, जिन ब्रांचेज में हम इंडस्ट्री से कनेक्ट कर लिए हैं, जिन ब्रांचेज के में हमारे पास प्रैक्टिकल की सुविधा है, हम उन्हीं में आएंगे, ज्यादा में नहीं आएंगे। तो अब मेरा जो सुझाव है, अगेन मेरा सुझाव ये है, यहाँ पर लोकल लेवल पर कुछ ऐसी कमेटी बननी चाहिए सरकार की तरफ से, और ऑन पेपर नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मैं देख रहा था पिछले दिनों एक हमारी सरकार का एक मैंडेट आया, उसमें क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी से कह दिया गया भाई आप इन लोगों की कमेटी बना लीजिए, और कमेटी बना के इसको, भाई उस कमेटी की मीटिंग तो आज तक हुई नहीं। कमेटी आपने बना ली होगी,
कमेटी की मीटिंग कराइए, बैठ करके बात करिए। से फॉर एग्जांपल शोभित यूनिवर्सिटी में आज की डेट में एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, फूड चेन टेक्नोलॉजी में और मैनेजमेंट के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, एग्री बिजनेस में एक्सपर्टाइज। ठीक है, तो जो मान लो बी यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो आकर के हमारे यहाँ पढ़ ले, महीने, 2 महीने, 3 महीने, और वो जो हम क्रेडिट लें वो क्रेडिट दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है वो उस क्रेडिट को माने। तो इस तरह के जो क्रेडिट कोर्सेज हैं, हालांकि ये क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम जो है, लेकिन ये क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम जो है वो जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं, लोकल इंस्टीट्यूशन है, पास के हैं, कम से कम स्किल ओरिएंटेड सिस्टम में वो हम चला पाएंगे, तभी जाकर के ये हम वाइड वैरायटी ऑफ दी स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज स्टूडेंट्स को दे पाएंगे। किसी भी एक यूनिवर्सिटी से, किसी भी एक इंस्टीट्यूशन से, किसी भी एक प्राइमरी स्कूल से अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सारी जितनी भी स्किल ओरिएंटेड कोर्स हैं उनमें सब में अपनी एक्सपर्टाइज डेवलप कर लेगा, सब में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा, सब में उसके पास एकेडमिक एक्सपर्टाइज हो जाएगी, टीचर्स हो जाएंगे, तो ये हमारा छलावा है। अभी इमीडिएटली नहीं कर पाएंगे, स्लोली एंड स्लोली फेज मैनर में हो सकता है हम कर लें। भाई से फॉर एग्जांपल हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि हमारे पूरे मेरठ के अंदर हमें 50 स्किल ओरिएंटेड करने हैं। मेरठ में 5 यूनिवर्सिटीज हैं, तो एक बॉडी हो यहाँ पे जो ये आइडेंटिफाई करेगा भाई ये 50 स्किल हैं, इसमें 10 स्किल में ये ए यूनिवर्सिटी करेगी इस पर एक्सपर्टाइज, 10 में बी करेगी, 10 में सी करेगी, 10 में डी करेगी, 10 में ई करेगी, और ये जो रिसोर्सेज हैं ये कॉमन होंगे। अब इन रिसोर्सेज को कॉमन को सरकार को फंड करना, सरकार फंड करेगी इनको, तो सरकार इनको फंड करेगी और कॉमन रिसोर्सेज है वो एवरीबॉडी, वो कॉमन रिसोर्स है, मैं भी यूज कर सकता हूँ, ए यूनिवर्सिटी यूज करेगी, बी भी करेगी, सी भी करेगी, डी भी करेगी, ई भी करेगी। तो कॉमन रिसोर्सेज बना करके जो स्किल्स हैं, जो चीजें वो एक डेवलप करके तभी हमारा सिस्टम जो है एक साथ। हमने पॉलिसी तो हमने बहुत अच्छी ला दी, लेकिन क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं कि हम इसको एक स्टेप में इम्प्लीमेंट करते हैं? नो, एक स्टेप में नहीं कर सकते, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। और स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन कि हम स्किल आइडेंटिटी, जैसे मेरठ है, मेरठ हब है, जैसे मान लीजिए मेरठ हब है शुगर इंडस्ट्री का, मेरठ हब है आपका खद्दर के कपड़े का, मेरठ हब है जैसे ज्वेलरी का, मेरठ हब है जैसे आपकी कैंचियों का, मेरठ हब है स्पोर्ट्स गुड का। तो हम ये डेवलप करें कि भाई इसकी जो रिलेटेड स्किल्स हैं उन पर जो है गवर्नमेंट उनके सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर बनाए, और उस ट्रेनिंग सेंटर पर शोभित यूनिवर्सिटी का भी स्टूडेंट, दूसरी यूनिवर्सिटी का भी, तीसरी का भी, चौथी का भी, 5वीं का जाके मत सीख, थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकल वहां सीख ले, और प्रैक्टिकल वहां सीख करके वो आए। तो सरकार को जो है बहुत बड़े पैमाने पर इसमें एक थिंकिंग करके, विजन ला करके ये चीजें करनी पड़े। जो ऐसे अब हमने जैसे शोभित यूनिवर्सिटी है 1 साल से इस पर काम कर रही है, और 1 साल से काम करने के बाद हमने कोर्सेज आइडेंटिफाई किए, इंडस्ट्रीज से कनेक्ट किया है। हमारी जो MOU है वो यूपी की जो इंडस्ट्रीज है, इंडियन यूनिवर्सिटी जो इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, 8000 इंडस्ट्री है, उनसे हमारी MOU हुई है, बाकायदा हमने उनसे कनेक्ट किया है, उनसे हमने पूछा है कि भाई आप हमारे कितने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग किस किस में दे दोगे, उसी के बेस पर हमने कोर्स स्ट्रक्चर बनाया। तो इस तरह की एक्सरसाइज सभी यूनिवर्सिटीज को करनी पड़ेगी, और तभी जाकर के ये पॉलिसी ठीक से। अब लेकिन चैलेंज आएगा प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी में हमने कह दिया कारपेंटिंग शॉप है, कारपेंटर की है, और लोहार की है, सब तरह की शॉप्स उन्होंने दिखाया है। एग्रीकल्चर में उन्होंने 5 कोर्सेज छांटे हैं, उन एग्रीकल्चर में जबकि जो है 5 कोर्सेज बहुत कम है। मैं आपके बड़े प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट के लिए बात चेताना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर 50% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। आपने कोरोना पीरियड के अंदर देखा होगा कि कोरोना पीरियड के अंदर सारे सेक्टर धराशायी हो गए, एग्रीकल्चर फिर भी उसने आपकी इकोनॉमी को बचाए रखा, और 17% ग्रोथ उसने फिर भी दी है,
और मंत्री जी का आह्वान करना चाहता हूं आपके बिग प्लेटफॉर्म से कि जो उनका सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, आई कैन हैव ए बेट कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार खाली 2 साल केवल एग्रीकल्चर पर फोकस कर लें, आप 50% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर दे रही है और एग्रीकल्चर के अंदर 15 एग्रीकल्चरल जोन्स हैं, क्लाइमेटिक जोन्स इंडिया के अंदर। वर्ल्ड के अंदर कोई भी क्लाइमेट ऐसी नहीं है जो हिंदुस्तान के अंदर ना हो, किसी न किसी कोने में। वी कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग, वी कैन प्रोडक्ट एवरीथिंग। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है हम उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएं। अब आप सोचे कि साहब यहाँ राली चौहान मार्केट का जो गांव का किसान है, या इंद्र सिंह मैथरा गांव का किसान जो है, वो इंग्लैंड में जाकर के अपना आम बेच देगा, या इंग्लैंड में जाकर अपना व्हीट बेच देगा, या वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा यहाँ पे, और वो जाकर उसकी इंग्लैंड में या अमेरिका में या जर्मनी में उसकी बिक जाएगी? नहीं, वो नहीं बेच सकता। वो दिल्ली में भी जाकर नहीं बेच सकता, उसको मेरठ में भी बेचना डिफिकल्ट है। तो एग्री बिजनेस और ये सारी चीजें सरकार को लानी पड़ेंगी, सरकार को इसमें वर्क करना पड़ेगा। सरकार उसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर पे आए, फूड प्रोसेसिंग पे आए, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। हम मान लीजिए टमाटर है, टमाटर को मैं मान लीजिए ड्राई पाउडर बना करके, ड्राई स्लाइस बना करके मैं बेचूंगा। टमाटर मेरा यहाँ पे 10 रुपए किलो बिक रहा है किसान का, और उसी टमाटर को मैं 200 रुपए किलो इंग्लैंड में जाकर बेच सकता हूँ ड्राई करके। डीआरडीओ हमारी बहुत बड़ी संस्था है, डीआरडीओ ने टेक्निक ऐसी डेवलप कर ली। तो आलू है, आलू किसान का 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो बिकता है, और चिप्स कितने का मिलता है आप देखिए, वो 25 रुपए का पैकेट जरा सा। तो ये प्रोसेसिंग जो है ये हमें लानी पड़ेगी, फूड प्रोसेसिंग लानी पड़ेगी। और फूड प्रोसेसिंग के बिना हम किसान की आय 2 गुना नहीं कर सकते, ये बात आप समझ लीजिए। जब तक हम किसान को उसके प्रोडक्ट की, किसान को देखिए, बहुत बात मैं कह रहा हूँ, बहुत बार प्लेटफॉर्म पे मैं कह चुका हूँ, किसान को सब्सिडी नहीं चाहिए, किसान को खाली उसके प्रोडक्ट का सही प्राइस चाहिए। वो हम नहीं दे पा रहे। एक सीजन में तो किसान का टमाटर 5 रुपए किलो बिक रहा है, एक सीजन में 100 रुपए किलो बिक रहा है। भाई 5 से लेकर 100 तक जो उसका किसान का जो वेरिएशन है, वो बेचारा कैसे करेगा? 5 रुपए में उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं निकलती। अब अगर हम फूड प्रोसेसिंग लगा दें और हम किसान को इंश्योर करते हैं भाई तुम्हारा टमाटर जो है 20 रुपए किलो मिनिमम बिकेगा, और 20 रुपए किलो मिनिमम कब बिकेगा? जब हमारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगी। जब वो सीजन है तो सीजन के टाइम पर ऐसी यूनिट्स हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जब तक नहीं आएगी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, किसान की आय नहीं बढ़ सकती। जब हमारी इंडस्ट्री आकर के गांव में बैठेगी और गांव में लेकर के उसको किसान का टमाटर खरीद करके उसको ड्राई में कन्वर्ट करेगी, और ड्राई में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करेगी, या मान लीजिए दिल्ली में ही बेचेगी। दिल्ली में अगर मान लीजिए सीजन के अंदर फ्रेश टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है, और ड्राई टमाटर वाला पार्ट जो है उसको मान लीजिए 50 रुपए किलो मिल जाता है दिल्ली में, और उसके अंदर टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो एवरीबॉडी विल बाई। शेल्फ लाइफ भी उसकी ज्यादा होती है। तो वी विल हैव टू चेंज द माइंडसेट। हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा हमें लोगों को, और ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है सब कुछ, सारी चीजें हैं, यही सब चीजें हैं, बहुत ब्रॉड है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन, और इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें प्राइवेट फर्म्स को, प्राइवेट इंडस्ट्री को भी इसमें आना पड़ेगा। और जब तक प्राइवेट, हम ये कहें साहब हर चीज सरकार कर दे, सब चीज सरकार भी नहीं कर सकती। टैक्स तो हम देना नहीं चाहते, सरकार टैक्स की हम चोरी करना चाहते हैं। हर आदमी चाहता है ऐसा हम टैक्स ना दें। सर्विसमैन की तो मजबूरी है, मेरी तो मजबूरी है, जितनी मुझे तनख्वाह मिलती है वो सोर्स पे कट जाता है। बिजनेसमैन चाहता है कि साहब मैं जीएसटी ना दूं, कस्टमर से तो ले लूं लेकिन सरकार को ना दूं। मेरी फिक्स हो जाए कि मैं पूरी साल में मैं इतना ही जीएसटी दूंगा, चाहे मैं कमाऊं कितनी भी, कस्टमर से कितनी लूं, वो मुझे छूट होनी चाहिए, लेकिन सरकार को मैं इससे ज्यादा ना दूं। तो ये जो सोच है, हमारी माइंडसेट है, ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा।
तो सरकार भी सब चीज नहीं कर सकती। पब्लिक प्राइवेट, अच्छा प्राइवेट वाला आपके पास इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? अगर वो प्राइवेट वाला 100 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसे लग रहा है कि भाई 100 के मुझे 110, 115, 120, 25, 150 मिलेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। और वो तो ये देखेगा, अगर मान लो इस बिजनेस में मुझे 150 मिल रहा है और दूसरे में मुझे 130 मिल रहा है, तो मैं 130 वाले में जाऊंगा ही नहीं, मैं तो 150 वाले में जाऊंगा। तो आपको ये जो चीजें कंपटीशन ओपन चीजें करनी पड़ेगी, लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। तो खाली एजुकेशन पॉलिसी नहीं, पूरा का पूरा माहौल, अगर आपको देश को, चाहे इतनी बड़ी आपके पास पॉपुलेशन है 139 करोड़, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो आपके पास हैं, यूएस के पास भी इतनी बड़ी क्लाइमेट कंडीशंस नहीं है। रोज वहां तूफान आते हैं, रोज आप देखते हैं, कभी साइक्लोन आ गया, कभी कुछ आ गया, सारी चीजें हैं, और वो उनसे फाइट करते हैं ना। जापान को देख लीजिए, जर्मनी को देख लीजिए, किसी भी कंट्री को ले लीजिए, जापान है, जर्मनी हमसे बाद में आजाद हुए, कहां पहुंच गए? क्यों पहुंच गए? क्योंकि उन्होंने पूरे नेशनल लेवल पर लेकर के ये सोचा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीजें बनाई। उनको पता था कि हम इसमें एग्रीकल्चर, हमारे पास तो इतनी बड़ी नेचर की देन है, प्रकृति की इतनी बड़ी देन है कि पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेट आपके हिंदुस्तान में है, डाइवर्सिफाइड है। तो हम फोकस करें एग्रीकल्चर के ऊपर। एक जमाना था जब मैं कक्षा 6 में 7 में पढ़ता था, तो मुझे पढ़ाया जाता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन मैं समझता हूं आज कि भारत एक राजनीति प्रधान देश है। कृषि प्रधान पीछे हट गई है, कृषि प्रधान पीछे चली गई है। तो हमें वो दोबारा से, अगर हमें अपना गौरव प्राप्त करना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हमें दोबारा से ये इस चीज पर आना पड़ेगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और एक हमारी वैदिक कल्चर में आप आ जाइए, वैदिक पीरियड में हिंदुस्तान का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में 30% हुआ करता था। पूरे वर्ल्ड में हम 30% इकोनॉमी को कवर करते थे। आज कितना? 3%। कहाँ आ गए भाई हम? इसको हम विकास कहते हैं। क्यों आ गए? क्योंकि हमने एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट कर दी। जो हमारी एक्सपर्टाइज थी, जिसमें हम विश्व गुरु थे, वो हमने छोड़ दी। हम भाग लिए उसके पीछे, विकास के पीछे भाग लिए हम, मोबाइल के पीछे, कंप्यूटर के पीछे, इंडस्ट्री। अरे भाई, जो आपकी जो एक्सपर्टाइज है उस पर आप फोकस करते हैं, उससे आप क्यों पीछे हट रहे? किसान हमारा भाग लिया शहर की तरफ। क्यों भागा? क्योंकि आपने उसको, उसकी जो इनकम है उसको उतना उसको आमदनी दी ही नहीं। 1980 के अंदर वीट का क्या प्राइस था? मेरी क्या सैलरी थी? 1980 के अंदर 1100 रुपए मुझे सैलरी मिलती थी। आज एक प्रोफेसर को 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है। वीट का प्राइस कितना था? आप देख लीजिए, क्या उस रेट में, उस रेशो में बढ़ गया? लोग हम बहुत कहते हैं गेहूं का दाम 20 रुपए सरकार बढ़ा देती है, 20 रुपए बढ़ गया तो हाय हाय हो जाती है साहब। दूध का दाम अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो हाय हाय हो जाती है। पानी की बोतल 20 रुपए की बिकती है, उसको मार्केट में खरीदते हैं हम, उस पर कोई हल्ला नहीं करता, कोई उस पर धरना प्रदर्शन नहीं करता। हाँ, दूध का दाम 2 रुपए बढ़ जाएगा, किसान का दाम 2 रुपए बढ़ जाएगा। अरे भाई, टमाटर है 20 रुपए किलो, मिनिमम उसको पैसे दे दो ना। किसान को क्या दिक्कत आ रही है? तो करिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब तक आप किसान के लिए नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल 100% आपके प्लेटफॉर्म से कहता हूं, तब तक जो है किसान की आय दोगुना नहीं। बिना प्राइस बढ़ाए आप कैसे आय दोगुना कर देंगे? आप कहते हैं साहब हम प्रोडक्शन बढ़ा दें। प्रोडक्शन बढ़ाने से किसान की आय दोगुना नहीं होगी। प्रोडक्शन बढ़ाने, डिमांड सप्लाई गैप हो जाएगा। बेसिक सिद्धांत है इकोनॉमिक्स का। हमने कोरोना पीरियड में देख लिया है। कोरोना पीरियड में आपकी तेल की क्या स्थिति थी? डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी, रेट डाउन हो गए थे इंटरनेशनल मार्केट में। ओपेक कंट्री को क्या करना पड़ा? उन्होंने अपनी सप्लाई घटाई, सप्लाई घटा के फिर तेल के दाम बढ़ गए। तो डिमांड सप्लाई, अब किसान जो है उसका टमाटर तो जिस सीजन में आना ही है, वो बेचारा कैसे जो है अपनी डिमांड सप्लाई घटा बढ़ा सकता है? वो सरकार को प्ले करना पड़ेगा, प्राइवेट फर्म्स को आना पड़ेगा। प्राइवेट फर्म्स जो किसानों से दूर हो रही हैं, जो कुछ
वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इनको कहते हैं साहब के प्राइवेट कंपनी वाले, प्राइवेट लोग जो है आपको चूस लेंगे भाई आप मत करिए कॉन्ट्रैक्ट उनसे। मैं कंट्रोवर्शियल उसको ज्यादा उठाना नहीं चाहता प्लेटफॉर्म से आपके से, लेकिन जो फार्म एक्ट है मैं समझता हूं कि जो लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। दिस इज सिविल कॉन्ट्रैक्ट, आप मत करिए कॉन्ट्रैक्ट भाई, मैंडेटरी कहाँ है ये? आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा मत करिए, लेकिन जो करना चाहता है उसको क्यों रोक रहे हैं आप? जो करना चाह रहा है उसको क्यों रोक रहे हैं? तो ये चीजें हैं बड़ी। नेशनल सोच जो है ना, राष्ट्रवादी सोच आज की डेट में वो है जिसमें इकोनॉमिक्स है। दिस इज इकोनॉमिक वार। आज की डेट में हथियार से लड़ाई नहीं हो रही वर्ल्ड में। अब आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, अफगानिस्तान में क्या है, ये सब इकोनॉमिक्स है। चाइना के देख लीजिए, अब चाइना पाकिस्तान का शुरू हो गया है, वहां उसकी बस को जो है उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है चाइना के। चाइना ने वार्निंग दे दी, चाइना की फौज पहुंच गई वहां पे, चाइना की टीम पहुंच गई वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो अब ये इकोनॉमिक वार चल रही है, टेक्नोलॉजी वार चल रही है। कुछ दिन में आप देखेंगे कि जो लड़ाई अब सिपाही लड़ता है, सिपाही नहीं लड़ेगा, रोबोट्स लड़ेंगे। वो सब एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है, टेक्नोलॉजी में है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, जो विजन है एजुकेशन पॉलिसी का, वो विजन एजुकेशन पॉलिसी का बहुत दूरगामी है। इम्प्लीमेंटेशन इसका वही मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आपके प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, ये आपके प्लेटफॉर्म पे प्रिजर्व रहेगा। और आप आने वाली नस्ल 10 साल बाद देखेंगे कि प्रोफेसर एपी गर्ग ने, वाइस चांसलर शोभित यूनिवर्सिटी ने आज 10 से 10 साल पहले ये बात कह दी थी कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वही सबसे बड़ा चैलेंज है। पॉलिसी बहुत अच्छी है और इम्प्लीमेंटेशन सरकार इसको करा लेगी तो पूरा कंट्री, पूरा देश, हम वर्ल्ड के विश्व गुरु बन जाएंगे। तो आपने हमारे पूछने से पहले ही आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बता दिए कि इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आपने बोला कि पेपर पे बहुत आसान है, बट वो इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ही बहुत बड़ा हर्डल आएगा। लाइक आपने अपने भी पॉइंट्स दिए, दैट इज लाइक वेरी मच नीडेड राइट नाउ, और हमारे व्यूअर्स को भी जान के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑल्सो सर कि रिसर्च और कैसे इम्प्रूव हो सकती है अंडर द NEP 2020 आपके अकॉर्डिंग? यस, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि मैं 45-46 साल से रिसर्च में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। और आप लोगों ने देखा भी होगा, सबको पता भी है कि शोभित यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पूरे एकेडमिक वर्ल्ड पर हमारे यहाँ जो है 20% हमारे यहाँ जो है नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स रिसर्च में आ रहे हैं और रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, और हमारा जो पब्लिकेशंस है वो वर्ल्ड एकेडमिक मैप पे आ रहा है। अब इस पे मैं आपको फोकस दिखाऊंगा। गवर्नमेंट ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक NRF बनाया, नेशनल रिसर्च फंड, और नेशनल रिसर्च फंड में उन्होंने प्रायोरिटीज अपनी डिफाइन कर। वो प्रायोरिटी जो है वो नेशनल रेलिवेंस, सोशल रेलिवेंस। अब मैं अगर बेसिक रिसर्च करना चाहता हूं तो इट इज डिफिकल्ट, तो मुझे बेसिक रिसर्च में पैसा नहीं मिलता, बहुत क्लियर है। अगर मैं रिसर्च करना चाहता हूं, जैसे फ्लड्स क्यों आती है, हर साल फ्लड आती है, बाढ़ आ रही है भाई, बाढ़ क्यों आ रही है? अगर हम इस बाढ़ के पानी को रोक लें, वाटर मैनेजमेंट, हल्ला मचा रहे हैं साहब, सारे में हल्ला मच रहा है साहब, पानी कम यूज करिए, कम यूज करिए, कम। भाई क्यों कम यूज करिए? बरसात कम हो रही है क्या? अगर आप आज से 50 साल पहले का रेनफॉल देखें और आज का रेनफॉल देखें, टोटल रेनफॉल की बात कर रहा हूं मैं, साइंस की बात कर रहा हूँ, प्योर साइंस की बात। जो आज से 50 साल पहले रेनफॉल था टोटल, और जो आज है रेनफॉल टोटल वही है। आज से 50 साल पहले 1970 के बाद क्या है कि ये सारा एनवायरमेंट चेंज हुआ है, और 1970 के बाद क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ हिंदुस्तान में, नहीं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड का एनवायरमेंट पूरे पिछले 50 साल में खराब हुआ है। 50 साल से पहले हम लोग नेचर के बहुत क्लोज थे, पूरा वर्ल्ड नेचर के क्लोज था, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो मैड रेस है उसने पूरे एनवायरमेंट को खराब कर दिया। वाटर क्राइसिस आ गए, ऑक्सीजन क्राइसिस आ गया, पॉल्यूशन क्राइसिस आ गए, सब तरह के क्राइसिस आ गए।
तो अब ये जो चीजें, ये क्राइसिस जो आए हैं, ये मैनेजमेंट की वजह से। अब रिसर्च जो होगी खाली उन चीज पे होगी, तो गवर्नमेंट की सीधी फोकस है, आप बाढ़ नियंत्रण पे रिसर्च बनाइए साहब, वाटर मैनेजमेंट को करिए। जब रेनफॉल होता है तो रेनफॉल जो हो रहा है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो रहा है। रेन जो है, हमने तालाब बंद कर दिए सारी। ये जो तो सरकार की जो फोकस है अब उन चीज, अब कोरोना है, सरकार की पूरे एक साल में कोरोना पे फोकस रही, और आई एम हैप्पी, माननीय प्रधानमंत्री जी को, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, और हमारे वैज्ञानिकों को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने पूरे वर्ल्ड के अंदर शो कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। उन्होंने एक साल से कम में वैक्सीन बना करके मार्केट में ला दी, और थैंक्स टू द अथॉरिटीज कि उन्होंने भी उसी पैटर्न पे इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज ला करके पूरे संसार को साबित कर दिया कि हम भी वैक्सीन बना करके इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज में ला सकते हैं। जो सबसे मिनिमम टाइम था वैक्सीन बनाने का, आज तक का रिकॉर्ड था, वो 1964 में वो मम्स के खिलाफ था, 4 साल में वैक्सीन बनी थी, और ये 1 साल से कम में बनी। और हिंदुस्तान ने एक वैक्सीन तो हिंदुस्तान की अपनी ही है, उसको इजाद भी हमने किया है, प्रोड्यूस भी हम कर रहे हैं। और आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूं, क्योंकि कोरोना आजकल सबसे बड़ी चैलेंज है, तो सरकार की फोकस भी उसी तरह से रिसर्च में। सरकार ने इस समय कोरोना के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट जमा हुए और जो वायबल थे, सरकार ने उनको पैसा दिया, तभी तो 1 साल में उन्होंने वैक्सीन बना दी। अगर सरकार की पॉलिसी ना होती, फंड ना होता, सरकार की प्रमोशन ना होती, तो कैसे बना देते? बिना सरकार की मदद के, बिना सरकार के एनकरेजमेंट के, बिना सरकार की पॉलिसी के कोई कंट्री डेवलप नहीं। सरकार का जो विजन है वो होना है। इस सरकार का विजन बहुत क्लियर है। उस एनआरएफ के अंदर इन्होंने बिल्कुल बाकायदा मैंडेट दे रखा है कि हमें इस तरह की रिसर्च चाहिए। एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की रिसर्च चाहिए सरकार का। हमें सॉइल हेल्दी रिसर्च चाहिए, हेल्दी सॉइल होनी चाहिए। अब आप देखें तो यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर सॉइल अभी भी पंजाब से और हरियाणा से हेल्दी। मैं जब 1975 के अंदर रिसर्च करता था, तो मैं सॉइल की, जब मैंने माइक्रोबियल डाइवर्सिटी देखी थी, उसकी सॉइल प्रोफाइल देखी थी, उस समय मेरठ के अंदर सॉइल की जो प्रोफाइल थी बहुत अच्छी थी। और आज मैं जब उसको देखता हूँ, शोभित यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर ही हमने रिसर्च की और हमने देखा कि सॉइल की जो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है वो काफी रिड्यूस हुई। क्यों? हमने एग्रोकेमिकल्स खूब डाले, खूब फर्टिलाइजर डाले, पेस्टिसाइड डाले, इंसेक्टिसाइड डाले, फंजीसाइड डाले, जो मर्जी आए डाला। और किसान ने सोचा कि भाई ये हमने सरकार तो कह रही है 5 ग्राम डालो, तो इतनी बढ़ गई, तो किसान की सोच हो गई अगर हम 10 ग्राम डालेंगे तो शायद हो सकता है डबल हो जाए। तो किसान ने वो 10 ग्राम डाल दी। अब उसने 10 ग्राम ने कितना लॉस करा? आपकी सॉइल की माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, फर्टिलिटी सब करा। तो सरकार की ये पॉलिसी बहुत क्लियर है कि वो वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट, और उन वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट के अंदर जो सरकार है, आप प्रोजेक्ट जमा करिए। तो सरकार ने बहुत क्लियर कर दिया कि 3 क्राइटेरिया होंगे। पहला क्राइटेरिया सरकार का होगा कि जो भी आप प्रोजेक्ट जमा कर रहे हैं वो उनकी नेशनल पॉलिसी के अंदर, रिसर्च के अंदर है नहीं, उसकी सोशल रेलिवेंस है नहीं, उससे देश को क्या फायदा, देश की इकोनॉमिक्स को क्या फायदा होगा, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पुअर आदमी है, सोशल सोसाइटी है, उसका स्टेटस कैसे बढ़ेगा, आपको एड्रेस। दूसरा क्राइटेरिया उनका बहुत क्लियर है कि दूसरा क्राइटेरिया वो देखेंगे कि जिसने प्रोजेक्ट जमा किया, आपने इसमें ऑलरेडी कुछ एक्सपर्टाइज हासिल कर रखी है, नहीं कर रखी है, आपके पास कुछ है नहीं है, आपके पास ये ब्रेन इसको काम करने के लिए है नहीं है, कॉम्पिटेंस आपके पास है नहीं है, आपके पास कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, आपका बेसिक है, आपके पास गिलास है तो हम आपको पानी दे देंगे। आप चाहे हम आपको गिलास भी दें और पानी भी दें तो सरकार नहीं देगी। गिलास आप अपना लाइए, पानी सरकार दे देगी। बहुत बेसिक थिंग। तो सरकार ने कह दिया कि भाई कुछ चीजें आप अपनी डालिए, आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए, और फंडामेंटल जब आपके पास हो जाए और आपने कुछ काम कर लिया हो और आपको ये हो कि भाई इस चीज को बनाने से, इस चीज को करने से मेरी ये देश की ये हालत सुधरेगी, तो आप फंड जमा करिए। फिर मॉनिटरिंग है। तो अब क्या होता था कि अब जो
कि अब तक जो सिस्टम है, अब तक सिस्टम हमने प्रोजेक्ट दे दिए, हमने अब तक हम रिसर्च कर रहे थे जिसकी रेलिवेंस थी अमेरिका को, जर्मनी को, जापान को, इंग्लैंड को, दूसरे कंट्रीज। अब तक वो कंट्रीज हमको गवर्न कर रहे थे, हमको डायरेक्ट कर रहे थे कि भाई ये रिसर्च करो, ऐसे करो, इससे करो। अब हमको सरकार डायरेक्ट करेगी कि भाई सोसाइटी की डिमांड ये है, सोसाइटी को ये चाहिए, आप रिसर्च इस पे करो। तो अब जो रिसर्च का जो फंडा है वो बहुत क्लियर है, सरकार की जो सोच है बहुत क्लियर है। सरकार का कहना है कि भाई आप फूड प्रोसेसिंग में बनाइए, आप इनोवेशन टेक्नोलॉजी लाइए, आप जो किसान है, किसान का जो प्रोडक्ट है, भिंडी है, बैंगन है, टमाटर है, इसको ड्राई करके और कैसे जो इंग्लैंड में बेचा जाए। मेथी है, मेथी के कैप्सूल, आप देखिए बहुत छोटी सी बात कहता हूँ, मेथी है, मेथी एंटी डायबिटिक है, इट इज वेल प्रूवन, नहीं इसमें कोई डाउट। आप मेथी को उसका कैप्सूल बना करके मार्केट के अंदर बेचिए। जर्मनी के अंदर एक मेथी का कैप्सूल, इतना छोटा सा कैप्सूल जिसके अंदर मुश्किल से मैं समझता हूँ 1 ml से कम है, 500 माइक्रोलीटर भी नहीं, 300 माइक्रोलीटर उसके अंदर मेथी का लिक्विड है। तो मेरी फ्रेंड है कि मैं लास्ट टाइम उससे पूछा था, वो कह रही थी 2 यूरो का मिलता है। 2 यूरो का मतलब ये है 180 रुपए का। और वो एक मेथी का कैप्सूल कितने से बन जाएगा? 1 पेड़ से बन जाएगा, 1 पेड़ से। हमारे यहाँ कॉस्ट उसकी कितनी आती है कहूँगा कि 10 पैसे की। 10 पैसे का माल आपका 180 रुपए में। ये टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अमरूद की स्लाइस है, अमरूद हमारे हिंदुस्तान में होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाकी बहुत सारे के वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं होता। और अमरूद जो है विटामिन सी से रिच है, बहुत बढ़िया चीज है ये। मतलब ये इम्यूनिटी भी आपके बढ़ाता है। अमरूद के स्लाइस को आप ड्राई करके कैसे आप एक्सपोर्ट करें। अब वो ड्राई जो स्लाइस आती है ना, उसको जरा सा पानी में रखेंगे, माइक्रोवेव में करेंगे, तो वो बिल्कुल फ्रेश अमरूद बन जाता है, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे दिखाया भी। लास्ट टाइम मैं वेबिनार कर रहा था इंटरनेशनल सोवियत यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही, तो उसी में वो मुझे दिखा रहे थे कि भाई ये अमरूद जो है उन्होंने वहां पर जो है 200 रुपए का दिया। हमारे अमरूद कितने का मिलता है? एक अमरूद इतना मुश्किल से 5 रुपए का। तो वो 5 रुपए का अमरूद जब हम 200 रुपए का वहां पे बेच सकते हैं यूरोप में, तो हम वो टेक्नोलॉजी डेवलप करें भाई। हम किसान की आय जब बढ़ेगी, हमें वो चीज लानी पड़ेगी। तो वो उस चीज पर इस समय फोकस है एनआरएफ के। तो सरकार का कहना है कि रिसर्च करो, खूब करो, लेकिन भैया रिसर्च मुझे ये बता दो, इस रिसर्च से फायदा कितना होगा। आप ये बता दो इससे इकोनॉमिक्स कितनी बढ़ेगी। सीधी सीधी बात है। मैं 10 रुपए तुम्हें दूंगा, इस 10 रुपए से 50 रुपए का फायदा सरकार को या पब्लिक को होगा, नहीं होगा? नहीं होगा तो नमस्ते, और होगा तो वेलकम। Rightly said, sir. So, जितनी जल्दी जी बताएं। बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे हाईलाइट करें। सर आप कुछ और बोल रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं क्या, तो सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार का जो माइंड है बहुत क्लियर, और जितनी जल्दी हम उसको समझ लें उतनी जल्दी ही हम सिस्टम में फिट होंगे। सिस्टम में हम फिट होंगे तो सरकार कंट्री के लिए, देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं। अब बेसिक रिसर्च का जमाना नहीं, बहुत स्पष्ट पॉलिसी है। अप्लाइड रिसर्च, हालांकि देखिए बेसिक रिसर्च भी बहुत जरूरी है, और बेसिक रिसर्च के लिए सरकार ने उसमें कुछ कहा भी है कि थोड़ा फंड है, मैं समझता हूँ। लेकिन मुझे बहुत डाउट है, बहुत बड़ा डाउट है कि जितने भी, क्योंकि उसके पैनल के अंदर जो लोग हैं, मैं उनके सीवी को और सबको देखता हूँ, उनकी सोच भी, उनसे इंटरेक्शन भी होती है, उनमें से कोई बेसिक रिसर्च को फंड करने नहीं जाता। तो जो बेसिक रिसर्च पर काम कर रहे हैं वो कन्वर्ट कर दें जल्दी से जल्दी अप्लाइड रिसर्च के अंदर, और सोसाइटी से कनेक्ट करें। और वास्तव में सही भी है, बेसिक रिसर्च इज वेल नोन। सबको पता है कि भाई तुलसी जो है, तुलसी के खाने से, तुलसी के यूज करने से बहुत सारे फायदे हैं आयुर्वेदिक। उसके ऊपर आप बेसिक रिसर्च करके क्या करते? आप तुलसी सबको पता है कि साहब एंटीवायरल। अब आप इस पर प्रोजेक्ट करो कि साहब मैं तो इसकी एंटीवायरल कैपेसिटी टेस्ट करूंगा, दिस इज फुली।
नो गवर्नमेंट शुड फंड इट। आपको देखनी है तो आप तुलसी पे देखो उसकी इम्यूनोजेनिक एक्टिविटी क्या है। लहसुन है, सबको पता है कि ब्लड को थिन करती है, वेल प्रूवन है साइंस के अंदर। अब आप जो है इस प्रोजेक्टों के साथ मैं इसको देखना चाहता, क्यों देखना चाहते हो भाई? पता है गाय का दूध पीने से, गाय के दूध में बहुत सारे विटामिन है, बहुत सारी चीजें हैं, कंप्लीट फूड है, ठीक है। अब इसमें क्या, अब गाय के दूध की क्वालिटी बढ़ाने पर बात करो ना आप। गेहूं है, आप गेहूं आप खाते हैं, आप ये कहते हैं ग्लूटेन फ्री, अब आ रहा है ग्लूटेन फ्री होना चाहिए। जितनी भी आपको बीमारी हो रही है सारी, कभी आपसे बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स पे जब होगी, क्योंकि वो जो हमारा मैंडेट है, आप कहते हैं सब ब्लैक मीट खाइए, ब्लैक राइस खाइए, समझे। अब वो क्योंकि जितना फाइबरस डाइट ज्यादा होगी उतना ही आपके स्टमक के अंदर हैप्पी बैक्टीरिया होंगे तो आप भी हैप्पी होंगे। आपकी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ग्रुप बनाया था गट माइक्रोबायोम का, और 20 साइंटिस्ट उन्होंने सेलेक्ट किए थे जो इंडियन ओरिजिन के हैं। उस ग्रुप के अंदर फॉर्चुनेटली मैं भी हूँ, तो उसी में हमने गट माइक्रोबायोम, आपके प्लेटफॉर्म से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टोमक के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हैप्पी बैक्टीरिया है। अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए तो हम खुश रहेंगे, और हम खुश रहेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हैप्पीनेस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ सर्वाइवल। एक आदमी 150 साल जिंदा रह सकता है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। आपके 120 से 150 साल तक जो हमारा जीनोम है, हमारा जीनोम के अंदर पूरी कैपेसिटी है, लेकिन हम कितने 70 साल हमारी जो है एवरेज एज है हिंदुस्तान में। क्यों? पॉल्यूशन बढ़ा दिया हमने, नेचर से कट हो गए। तो अब जो एजुकेशन पॉलिसी है वो एजुकेशन पॉलिसी इसी चीज पे है, सस्टेनेबल लाइफ, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन, नेचर में कैसे रहें हम। तो उसके लिए अब हमें बनाना है तो साहब हम मोबाइल फोन ऐसा बनाएं कि साहब जो सस्ता हो, टिकाऊ हो, वो पॉलिसी है। Exactly, sir, as rightly noted. So, जैसे हमने पहले शुरुआत में थोड़े चैलेंजेस डिस्कस करे, मैं चाहूँगी कि आप वो भी चैलेंजेस हमें बताएं जो रूरल और अर्बन जो स्टूडेंट्स फेस कर सकते हैं, एज वेल एज द रूरल एंड अर्बन इंस्टीट्यूशंस, दोनों एस्पेक्ट्स। Yes, that is the most relevant question of today, I will say it. क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है आज भी 65% पॉपुलेशन तो हमारी विलेज में रहती है, गाँव में रहती है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में फर्स्ट में और सेकंड दोनों में डिजिटल इंडिया ने काफ़ी कुछ तरक्की की है। मुझे खूब अच्छी तरह से याद है कि मैं 1 GB का डाटा BSNL से ही आज से 6-7 साल पहले 300 रुपए का खरीदता था, 299, और वो डोंगल होता था, और डोंगल में लगा करके मैं लैपटॉप पे लगा करके उसको यूज करता। आज 2 GB डाटा पर डे मुझे मिल जाता है, और 299 रुपए महीने में। मतलब आज की डेट में मुझे 90 GB डाटा, 60 GB डाटा, अनलिमिटेड डाटा मिल जाता है, खाली उतने पे जो मेरा एक दिन का भी खर्चा नहीं था। तो डिजिटल इंडिया बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अभी भी क्या है कि जो स्पीड है हमारी इंटरनेट, जो कनेक्टिविटी, वो अभी भी उतनी अच्छी नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, तो यूनिवर्सिटी में कनेक्टिविटी अच्छी है, आपके यहाँ भी कनेक्टिविटी अच्छी है, मेरे यहाँ भी कनेक्टिविटी अच्छी है, फिर भी एक बार टूट गया ना संबंध हमारा आपका, कुछ देर के लिए टूटा ना, थोड़ी देर के लिए। तो जब हमारे इतने अच्छे सिस्टम के अंदर कनेक्टिविटी टूट सकती है, तो रूरल एरिया के अंदर जो स्टूडेंट बैठा हुआ उसको कितनी समस्या आती है। हम लोग जितनी भी टावर्स लगा रहे हैं, वो सब टावर्स हम वहां लगाते हैं जहां हमारे पेड वाले, ज्यादा पेड वाले कस्टमर हैं। गांव में तो उतने पेड वाले कस्टमर नहीं है, तो वहां तो हम BSNL टावर लगाएंगे साहब, वहां तो हमने सरकार पे छोड़ दिया कि सरकार लगाएगी, वहां जियो वाला नहीं लगाएगा।
जियो वाला ने तो अपना कह दिया साहब, एक सरकार से नियम बनवा दिया कि साहब कहीं भी कोई भी टावर यूज करेगा और कोई भी किसी की टावर यूज कर सकता है। अच्छी बात है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो गया, रिसोर्स शेयरिंग हो गया, लेकिन रिसोर्स शेयरिंग के साथ जब आप इतने सारे कनेक्शन दे रहे हो, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज वालों का ध्यान यहाँ पे आकर्षित करना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म से। भाई आप सबसे ज्यादा कनेक्शन आपने दे रखे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टावर्स तो आपकी नहीं है। आप सबसे ज्यादा टावर्स भी लगाओ भाई, सबसे ज्यादा टावर्स तो BSNL की है। टावर तो आप BSNL की यूज करोगे और पैसा आप कमाओगे, तो सरकार को यहाँ भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को उन्हें कंपेल करना चाहिए कि भाई आपको हम जब स्पेक्ट्रम दे रहे हैं तो आप जो है कुछ टावर्स, इतनी टावर्स जो है, अगर आप 5 टावर जो है मेरठ सिटी में लगा रहे हैं तो आपको 5 टावर ही रूरल एरिया में भी लगानी पड़ेंगी। जब तक आप रूरल एरिया में कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा। हम भले ही सब कुछ कर लें, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि आप 40% की बात कर रहे हो कि साहब 40% आपकी जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन ले लीजिए। आप सत्यम पोर्टल से ले लीजिए, इस पोर्टल से ले लीजिए, बहुत सारे पोर्टल हैं, 9 पोर्टल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल पोर्टल्स भी बहुत सारे हैं। इस समय एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज है, इतने सारे कोर्सेज हैं। आप अमेरिका की यूनिवर्सिटी जुड़ जाइए, इंग्लैंड से जुड़ जाइए, जर्मनी से जुड़ जाइए, जापान, किसी भी यूनिवर्सिटी से जुड़ जाइए बैठ करके, कोई कोर्स हम बैठे यहाँ कर लें, एनी कोर्स, एनी टाइम, एनीवेयर। दिस इज नाउ और एट ए मच चीपर रेट। कॉम्पिटिटिवनेस इतनी है, तो मैं जो मेरठ में बैठा हूँ मुझे तो मिल जाएगी क्योंकि मेरे पास कनेक्टिविटी है। जो इंद्र सिंह मैथरा में, जो कि हमारा आदर्श ग्राम है, जो आदर्श ग्राम डिक्लेयर हुआ है, अभी मैं हमारे अभिषेक भाई बैठे हुए हैं, इन लोगों ने अभी हमारे मैनेजमेंट वालों ने पिछले कुछ दिनों में वहाँ पे एक प्रोग्राम किया था और वो वहाँ पर कनेक्टिविटी देखना चाह रहे थे। बार बार कनेक्टिविटी टूट रही थी। तो कनेक्टिविटी जो इशू, 5G की बात चल रही है। अब हमारी एक फिल्म हस्ती हैं जिन्होंने 5G के खिलाफ भी एक दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया था। हालांकि दैट वाज बेसलेस, क्योंकि अभी तक साइंस की कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि 5G के खिलाफ कोई ऐसी भयानक स्थिति कहीं भी नहीं है। कहीं साइंस में साइंटिस्ट आजकल बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो भी टेक्नोलॉजी आने से आते ही, मतलब विदिन 24 आवर्स टेक्नोलॉजी जो है पूरे वर्ल्ड में पता चल जाती है। टेक्नोलॉजी आई 24 घंटे में सबको पता चल जाए। लेस देन 24 आवर्स, 24 आवर्स में तो डिस्कशन शुरू हो जाता है। क्या पता नहीं, डिस्कशन शुरू हो जाता है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स मार्केट में आ जाते हैं, नेट पर आ जाते हैं। तो ये जो चीजें, तो कनेक्टिविटी जो है दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो हमने अब जैसे सोबत यूनिवर्सिटी ने हमने क्या इसको एड्रेस किया, किस तरह से किया, हमने एड्रेस इसको इस तरह से किया। मैं बाकी यूनिवर्सिटीज को भी कहना चाहूंगा, इंस्टीट्यूशन को कहना चाहूंगा कि मॉडल को अपनाएं, आप फ्लेक्सिबल बने, जिससे हमने फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई। हमने जब ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन किया, ऑनलाइन हमने टीचिंग की, हमने स्टूडेंट से कह दिया कि भाई अगर आपको कनेक्टिविटी नहीं मिली तो हमारे पास लैब्स बड़ी हैं, रूम बड़े हैं, बड़े बड़े हमारे पास हॉल्स हैं। हमने उनसे कह दिया आप यहाँ आ जाए, सोशल डिस्टेंस हमने मेंटेन किया, आप हमारे यहाँ कनेक्टिविटी, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करें, पढ़ाई लिखाई से कंप्रोमाइज। कुछ क्लासेस हमने ड्यूअल मोड में चलाई, मैंने खुद लेक्चर लिए ड्यूअल मोड में। जो यहाँ आए, भाई ऑनलाइन भी चल रहा है, आप वहां बैठकर करना चाहे तो वहां करिए, यहाँ करना। सो ड्यूअल मोड सिस्टम। अभी एक सर्वे हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, नेचर में छपा है वो सर्वे। तो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट में सर्वे हुआ और सर्वे के बाद उसमें ये आया कि साहब के जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, आपने देखा होगा बहुत इंटरनेशनल वेबिनार हर इंस्टीट्यूट ने, जो रूरल के अंदर भी है, जो एक गांव के अंदर इंस्टीट्यूशन है, उसने भी इंटरनेशनल वेबिनार कर दिया। उसने भी एक आध दो अपने कुछ लोग जोड़ लिए, इंग्लैंड से जोड़ लिए, यहाँ से जोड़ लिए, और सब जगह से जोड़ करके वेबिनार करे, सुबह से शाम तक किए। वो बहुत अच्छी बात है, इससे एक पब्लिसिटी बनी, अवेयरनेस बनी, लोगों में जागरूकता आई, बहुत अच्छा। जो सर्वे हुआ है उसमें 74% साइंटिस्ट, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसने कहा है कि इंटरनेशनल सेमिनार अब ऑनलाइन ही होने चाहिए,
ऑफलाइन नहीं होने चाहिए। और जो बाकी लोग थे, बाकी लोगों में जो 20% लोगों ने कहा कि ड्यूअल मोड में होने चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। अब ऑफलाइन सेमिनार के पक्ष में कोई है ही नहीं, कोई नहीं चाहता कि साहब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, मीटिंग है, आप बुला। बहुत अच्छा, मैं तो बहुत आई एम वेरी हैप्पी। मैं चांसलर सर से जब कभी मुझे बात करनी होती थी, दिल्ली जाना पड़ता था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दिल्ली जाता था, 2 घंटे जाने में लगे, 2 घंटे शाम को आने में लगे और मीटिंग अपने होकर के आए। अब बहुत अच्छा है, कनेक्ट करते हैं हम, विद इन 5 मिनट्स हम फोन करते हैं कि साहब हमें आपसे बात करनी है, मीटिंग करनी है, कर लीजिए साहब। अब पूरी यूनिवर्सिटी की मीटिंग होनी होती है, पूरी यूनिवर्सिटी एक क्लिक पे लेकर के दिल्ली से कनेक्ट हो जाती है। अब एनी टाइम एनीवेयर, कहीं वो ट्रेवल में भी होते हैं तो मोबाइल पे मीटिंग कर लेते हैं। तो दिस इज सच सो कनेक्टिविटी, सरकार को बड़ा फोकस करना चाहिए, कनेक्टिविटी शुड इंक्रीज। 5G में देर क्यों हो रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा। 5G लाइए भाई, अब तो 4G तो बहुत पुराना हो गया, 5G लाइए, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो इंटरेक्शन भी बढ़ेगी। और एक रूरल और जो अर्बन के अंदर जो गैप है, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री जो भी है उसका तो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। सरकार को उनके ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी, सरकार को उसमें कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आप उनसे कहिए भाई, जब आप विलेजेस में आप उनको कनेक्शन दे रहे हैं, मोबाइल आप उनको दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उनको सिम दे रहे हैं विलेज वाले, तो विलेज वाले के लिए आप टावर क्यों नहीं लगाते भाई? पैसा तो आप वहां से कमा रहे हैं, तो आप खर्च भी करिए वहां। तो गवर्नमेंट ट्राई जो है, ट्राई शुड, मिनिस्ट्री को मैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्राई को मैं कहना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म से, वो करें, इनको फोर्स करें भाई। क्या आप 5 टावर अगर शहर में लगा रहे हो तो 2-4 टावर गांव में भी लगाओ। गांव में लगाने के लिए सरकार थोड़ी खाली, गांव में आप भी लगाओ भाई। तो व्हाइल गिविंग द, तो ये एक थोड़ी सी मेरी एक सोच हो सकता है कि आप जैसा मैं सरकार को ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या पब्लिक पे, लेकिन जो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं तो एक सोशल की वजह से और एक सोशली रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह से, जो पब्लिक की फीलिंग है, जो मैं पब्लिक से इंटरेक्शन करता रहता हूँ, उस तरह से आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार का, पब्लिक का, प्राइवेट इंडस्ट्रीज का, सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि भाई जब आप जो है बी रेस्पॉन्सिबल, बी सोशल, गांव वालों को भी उतना ही स्टेक होल्डर समझिए जितना शहर वाले। गांव वाले भी आपको पैसा दे रहे हैं, उन्होंने भी आपके मोबाइल ले रहे हैं, तो उनके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, कुछ राउटर वहां भी लगा दीजिए। पंचायत बन गई है, पंचायत में आजकल कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। मैं देखा लास्ट टाइम, फिर हमने तो यही कहा कि भाई पंचायत घर जो है वहीं जाकर के आप इसको अपनी मीटिंग करिए, तो पंचायत घर पे वहां फिर भी तो कनेक्टिविटी ठीक है। तो लेकिन पंचायत घर पे क्यों, पूरे गांव में हो ना, खाली पंचायत वाली थोड़ी मोबाइल फोन लेते हैं, सब लेते हैं, सब कनेक्शन लेते हैं। तो ये एक बिगेस्ट चैलेंज है रूरल में और अर्बन में। दूसरा जो बिगेस्ट चैलेंज है कम्युनिकेशन। रूरल वाला जो छात्र है उसकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है। उसके लिए मेरा एक सुझाव है जो मैं बहुत दिन से कहता भी हूँ और बहुत दिन से मैं एक ड्रीम भी है मेरा कि एक जो प्राइमरी एजुकेशन है वो यूनिफॉर्म है। गांव के छात्र को भी वही किताब पढ़े। अब सरकारी, और देखिए जब मैं पढ़ता था 1964 के, तब सरकारी स्कूल बेस्ट माने जाते। सरकारी स्कूल में दाखला होने का मतलब ये होता था कि साहब मैं थ्रू फर्स्ट क्लास था। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से मैंने, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बुलंदशहर से मैंने इंटर में मेरा दाखला हुआ, तो मुझे पब्लिक में, मेरे घर में सब ने ये था कि भाई सरकारी स्कूल में दाखला हो, ठीक है। दे वर वेरी हैप्पी गवर्नमेंट स्कूल में दाखला हो। आज की डेट में क्या है, आज की डेट में पब्लिक में ये कि पब्लिक स्कूल में दाखला हो गया, इस पब्लिक स्कूल में दाखला हो,
तो ये सोच 50 साल में क्यों बदल गई? क्योंकि जो हमारे सरकारी स्कूल थे वो नहीं दे पाए जो प्राइवेट स्कूल पब्लिक स्कूल दे रहे। अब आप जैसे मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। मैं जर्मनी में जब था 3 साल रहा मैं, तो मेरा बेटा जो था, जब मैं उसका दाखिला कराने के लिए गया तो मैंने कहा भी इसका मैं दाखिला इंटरनेशनल स्कूल में करा दूंगा, क्योंकि मैं तो 3 साल के लिए गया था, एग्जिस्टिंग साइंटिस्ट था। तो मैंने जब वहाँ पुलिस में रजिस्ट्रेशन होता है, आप चाहे तो वीजा पर, वर्क वीजा पर आए, चाहे आप टूरिस्ट वीजा पर आते तो नहीं, लेकिन जब आप वर्क वीजा पर आएंगे या स्टूडेंट फेलोशिप में, तो जब मैं पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराएंगे यहाँ से तो हमको परमिशन मिल जाती है। जब हम परमानेंट हमारा तब होता है जब हम पुलिस में जाके अपना लोकल पुलिस में जाकर रजिस्ट्रेशन करा देते हैं विदिन 1 मंथ। हमने जब कराया तो वहीं हमें पुलिस ऑफिसर बता दिया गया कि आपके बच्चे का स्कूल जो ये होगा, आप ये मतलब लोकेलिटी में, वही लोकेलिटी है आपके जो जहाँ पे आप रहते हैं उसके पास में ही आपको जाना पड़ेगा और उसी स्कूल में दाखिला होगा, कहीं और स्कूल में आप नहीं जा सकते। आप यू कैन नॉट सेलेक्ट। हमने कहा ठीक है, हम उसी स्कूल में पहुंचे। हमने वहाँ कहा कि भैया आप, तो उन्होंने हमारे बेटे का जब इंटरव्यू लिया, उससे बात की, तो उन्होंने कहा नहीं योर सन इज क्वालिफाइड फॉर द इंटरनेशनल स्कूल। पूरे फ्राइबर्ग में इंटरनेशनल स्कूल एक ही था। तो उसको मेरे घर से स्कूल तक जाने के लिए बस पास कॉलेज ने दिया, स्कूल ने दिया, आने जाने का बस पास दिया और वो चला गया। अब अच्छा, मुझे पता नहीं था और मुझे उस स्कूल वाले ने बताया भी नहीं कि भाई आप अगर इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला करा दोगे तो आपको फिर पुलिस को इन्फॉर्म करना है, आपका बच्चा यहाँ नहीं पढ़ रहा, आपका बच्चा वहाँ पढ़ रहा। ना उन्होंने मुझे बताया, ना मैंने पूछा, ना मुझे पता था। मैंने बच्चे को जाकर के, उन्होंने मुझे स्लिप दी, मैंने जाके बच्चे का दाखिला इंटरनेशनल स्कूल में करा दिया। 3 महीने बाद पुलिस वाले को कहूँ, मैं अपना मोबाइल, अपना फोन नंबर जो था डिपार्टमेंट का देके आया था, तो मेरे प्रोफेसर के पास फोन आया कि भाई आपके यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर जो आया हुआ है उसका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। मैंने कहा, प्रोफेसर ने मुझसे कहा, मैंने कहा भाई आपको कैसे पता? बोले कि पुलिस का फोन आया। मैंने कहा पुलिस वाले को कैसे पता? क्या वो मैंने कहा वो तो उसी स्कूल में जा रहा है, इंटरनेशनल स्कूल में। तो प्रोफेसर ने, मैंने कहा कि उसको उनको बताना चाहिए था। तो साहब मैंने जब उनको जाकर के एडमिशन दिया तो पुलिस वालों ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मेरा तो इग्नोरेंस है भाई, मुझे तो बताया नहीं, मुझे तो पता नहीं था। उन्होंने एक तो इंटरनेशनल स्कूल वाले की क्लास ली और एक उसकी लोकल स्कूल वाले की जिसने मुझे रिकमेंड किया था। जब आपने रिकमेंड किया था तो आपने मुझे हमें क्यों नहीं बताया? और इंटरनेशनल स्कूल वाले से कहा था जब आपके इसने दाखिला लीजिए तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? और हमें इस इंटरनेशनल साइंटिस्ट को हमने जो कहा, और वो पुलिस वाला जिसने फोन किया था वो फिर मेरे पास आया डिपार्टमेंट में अपोलोजाइज करने, दिस इज द फॉल्ट ऑफ आवर सिस्टम। अब आप ये देखिए, उसने कहा आई अपोलोजाइज यू ऑन बिहाफ ऑफ माई सिस्टम, दैट दिस इज द फॉल्ट ऑफ माई सिस्टम, दिस इज नॉट योर फॉल्ट। मेरा ग्रैंडसन है, वो यूएस में स्कूल में पढ़ता है, वो भी जहां रहता है वहीं पास में स्कूल है। तो सारे स्कूल, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड एक ही है, आप किसी स्कूल में दाखिला कराइए, सबका सिलेबस एक है, सबका स्टैंडर्ड एक है, सबके यहाँ बेंच हैं तो अच्छी बेंच है तो अच्छी है, सब एसी है तो एसी है, सबके यहाँ पढ़ाने वाले हैं तो अच्छे हैं, जो कोर्स करिकुलम है सबके यहाँ स्किल ओरिएंटेड, सब। तो सारे स्कूल्स एक से हैं, प्राइमरी स्कूल्स। तो किसी पेरेंट को दिक्कत भी नहीं है, वो भी चाहेगा कि भाई मैं तो पास वाले में कराऊं, वो क्यों दूर भेजेगा जब सेम स्टैंडर्ड है। अब जब मैं यहाँ इंडिया में रहा, मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में रहता था, सीसीएस में। मेरा छोटा बेटा जो है सीसीएस कैंपस से डीएमए में पढ़ने आता था, 19 किलोमीटर 18-19 किलोमीटर पड़ता है। अब वो सुबह को 7 बजे क्लास चलती थी, दोपहर को कई बार जाता था, तो दोपहर को जो है बस वो सो जाता था। आप देखिए, आप छोटा बच्चा, नर्सरी का बच्चा भाई सुबह को गया, 7 बजे जा रहा है और 12 बजे उसकी छुट्टी हुई, और 12 बजे जब वो जा रहा है तो भूखा भी होगा, 5-6 घंटे जब शुरू में जाएगा, वो बस में सो गया। वो तो बस वाला हमको जानता था, बस वाले से हमने कह दी थी, तो मेडिकल तक छोड़ करके फिर आता था और वेट करता था। अच्छा, हम बस में सो गया तो वो नहीं उतरता था बच्चा, तो फिर वो छोड़ के जाता था दोबारा से कि लौटते जब मैं छोड़ूंगा, सो रहा है भैया। तो आप देखिए कितना पेनफुल है यहाँ बच्चों के लिए कि बच्चा
10, 15, 20 किलोमीटर बस से भी सफर करता है वो भी उसके लिए पेनफुल, क्योंकि इतना कंपटीशन है। अब फिर पेरेंट्स में कंपटीशन होता है, साहब मेरे बच्चे का दाखला तो इसमें नहीं हुआ, मेरा बच्चा है इसमें। तो हमें प्राइमरी एजुकेशन को यूनिफॉर्म बनाना, वो चाहे रूरल का हो, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो। शहर के जब तक हम प्राइमरी एजुकेशन को यूनिफॉर्म, साइकोलॉजी कहती है, मैं थोड़ा साइकोलॉजी भी पढ़ता रहता हूँ, बायोलॉजी भी पढ़ता रहता हूँ, मेरी आजकल थोड़ी आदत ऐसी है कि मैं वाइड पढ़ता हूँ। साइकोलॉजी और मेंटल डेवलपमेंट कहता है कि बच्चे का डेवलपमेंट 5 साल की उम्र तक, मेंटल डेवलपमेंट 5 साल के बाद मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता। और ये 5 साल जो है बड़े क्रूशियल है और इसी को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो 5 साल की एज तक और 5 साल से लेकर के फिर जो 10 साल की 10 तक है, 5 से 10 तक है, जिस तरह से हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 5 इयर्स तक करा गया है, जो इसको सिस्टम को किया गया है। अब आपने सिस्टम तो ले आए, लेकिन जब तक आप यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं लाए, आई हैव 100% डाउट दैट दिस एजुकेशन पॉलिसी विल बी सक्सेसफुल। आपके प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं मैं, लिख लीजिए आप इसको। जब तक आप सारे प्राइमरी स्कूल्स को, 5वीं क्लास तक के स्कूल को सबको यूनिफॉर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम स्तर के नहीं लाएंगे, तब तक हम राष्ट्र हित की बात ना करें। तो सरकार को फोकस करना चाहिए सारे स्कूल से एक लेवल। गांव का बच्चा भी वही चीज पढ़े, शहर का बच्चा, उसका मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल स्टेटस बराबर हो। और जब मेंटल स्टेटस पर हम पढ़ाते क्यों, एजुकेशन क्यों करते हैं, एजुकेशन क्यों देते हैं भाई? हम 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं पढ़ा करके तभी से स्टूडेंट को स्किल बना रहे हैं। कहते हैं भाई 8वीं तक आप पढ़ लिए, अब आपको जो बढ़ई बनना है बढ़ई बन जाओ, और आपको लोहार बनना है लोहार बन जाओ, आपको कंप्यूटर स्पेशलिस्ट बनना है। लेकिन हमारा एक मेंटल डेवलपमेंट, स्टेटस, सोच, थिंकिंग, क्रिएटिविटी वो बढ़नी चाहिए, पूरा चीज होनी चाहिए, तब उसके बाद हम उस लेवल पे जाएं। तो उस चीज के लिए हमें यूनिफॉर्मिटी लानी। अगर हम वास्तव में compete करना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज से, तो हम उनके सिस्टम को देखें। उनके सिस्टम में सबसे बड़ी खास बात क्या है? यूनिफॉर्म, इक्वलिटी। हमारा संविधान इक्वलिटी की बात तो करता है, लेकिन इक्वलिटी है नहीं। आर्टिकल 21 आप खुद रोज पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी रोज उसके आर्टिकल 21 की बात करता है, हर आदमी आर्टिकल 21 की बात करता है, लेकिन है कहां प्रैक्टिस में? हु इज इक्वल, इन व्हाट रेस्पेक्ट हु इज इक्वल? प्रैक्टिकली तो कोई भी नहीं है। तो इक्वलिटी लाइए आप, इक्वल एजुकेशन तो दे दीजिए पहले सबको, इक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे दीजिए, इक्वल फैसिलिटीज तो दे दीजिए। इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, सबको इक्वल पानी मुहैया करा दीजिए। गांव वाले को ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता, शहर वाले को पानी की बोतल मिलती है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें। कभी कभी आप इसको देखें तो एनालाइज करें पूरा, तो आपको पता चलेगा कि ट्राइबल्स में चले जाइए आप। कभी मैं तो कभी जाता हूँ, कभी जब मन होता है तो चला जाता हूँ दूर, कभी बैठ करके वहाँ उन लोगों से डिस्कस करता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, उनकी समस्या करता हूँ। कर कुछ नहीं पाता, जितनी बात है उनको बता देता हूँ, भाई अगर आप इसको समस्या को ऐसे समाधान कर लें, जितना मेरे पास रिसोर्स नहीं है उतनी से कर देता है, बता देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला काम, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं समाज में जो सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। लेकिन इक्वलिटी जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Quality, uniformity, I think very much needed, like you mentioned. And sir, lastly, जैसे अगर आपका विजन है कि ये पॉलिसी NEP अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, so इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? Like what do you visualize in the next 5 years? तो ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए मैडम, बहुत क्लियर, मैं सरकार को भी कहता हूँ, सबको कहता हूँ, यू इम्प्लीमेंट इट टुडे and after 5 years you can compete with the world.
US will be your follower. I can bet. क्यों? अब आप मेरे पूछे क्यों? रीजन बहुत क्लियर है। जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हिंदुस्तान के पास है, उतने प्राकृतिक रिसोर्सेज वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के पास नहीं। हम जो 139 करोड़ लोगों को खाना आज की डेट में दे रहे हैं, वो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज की बदौलत। यूनिफॉर्मिटी ले आए, एजुकेशन करते हैं, इसको पॉलिसी को ला दें, हर आदमी के पास रोजगार होगा, पॉपुलेशन भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉपुलेशन प्रॉब्लम हमें क्यों लग रही है? 139 करोड़ पॉपुलेशन हमें ज्यादा क्यों लग रही है? हम आज जनसंख्या कंट्रोल की बात क्यों कर रहे हैं? जनसंख्या कंट्रोल की बात हम इसलिए कर रहे हैं, पॉलिटिकल पॉइंट पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा मुद्दा भी नहीं है और वो मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, आपको सही बताऊं। हम इसीलिए तो बात कर रहे हैं क्योंकि हम सभी को क्वालिटी न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे। अभी भी अगर आप देखें तो कुपोषण की स्थिति है। हम क्यों बात कर रहे हैं, क्यों कंट्रोल की बात कर रहे हैं? क्योंकि हम सबको जॉब नहीं दे पा रहे। देखिए, अगर कुपोषण को आप जोड़े तो कुपोषण क्यों है? क्योंकि हर एक आदमी के पास अर्निंग सोर्स नहीं है। हर आदमी उतना नहीं कमाता जितना आप और मैं कमा रहे हैं। ठीक है, मेरे और आपके बच्चे भी कुपोषण हैं। क्यों है? हम उसको पीछे पीछे लगते रहते, दूध पी ले भाई, अब ये फल खा ले, अब ये खा ले। वो कहते हैं नहीं, मैं तो चॉकलेट खाऊंगा, मैं तो मीठी टॉफी चाहिए, मुझे ये चाहिए। उसके टेस्ट अलग होते हैं, वो अलग इशू है, मैं उस पर नहीं आऊंगा। लेकिन जो एक किसी को नहीं मिल रहा है, हम जॉब सबको नहीं, 139 करोड़ पॉपुलेशन को जॉब देना किसी भी सरकार के बस का नहीं है। आप बीजेपी छोड़ दीजिए, किसी सरकार को ले आइए, सारी सरकार को मिला करके एक कंबाइंड सरकार बना दी, तब भी 139 करोड़ पॉपुलेशन को जॉब नहीं दे सकते। जॉब आप नहीं दे सकते तो सबको आप पोषण भी नहीं दे सकते। पोषण नहीं दे सकते तो हर आदमी हेल्दी भी नहीं हो सकता। हर चीज जॉब से जुड़ी हुई है। हाँ, आप अपनी सोच बदलें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आ जाए, दे देंगे आप। चाइना है, चाइना ने 1990 के बाद, 1990 से पहले तो चाइना की भी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी। चाइना ने अपनी, मैं देखिए चाइना की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उसकी सही बात है वो हमें एडमिट करनी चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी आज मुझे कहते हैं कि साहब सोवियत यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो है चाइना गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, चाइना गवर्नमेंट, मैं उसकी जो सोच है या उसकी जो वर्किंग स्टाइल है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके जो विस्तारवाद नीति है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। उसकी जो मेंटलिटी है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके प्लेटफॉर्म से बात अपने जो हमारे जो माननीय राजनीतिक हैं उनके लिए ये क्लियर करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने 1990 के बाद अपनी एक पॉलिसी बना ली कि हम जो भी बनाएंगे उसको एक्सपोर्ट करेंगे। 60% ऑफ द प्रोडक्ट चाइना जो बनाती है वो एक्सपोर्ट करती है, पूरे वर्ल्ड में करती है। हर चीज आपको अच्छी भी, बुरी भी, सस्ती भी और महंगी भी, सब तरह की चीज चाइना, सब तरह का माल बनाते हैं और सब तरह का माल एक्सपोर्ट करते हैं। हम स्किल ओरिएंटेड बना लें, सबको आ जाए हम चाइना वाली पॉलिसी पे, हम मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दें, कंपीट करें वर्ल्ड में, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पे आ जाए। 139 करोड़ लोगों को हम जॉब दे देंगे और को हम जॉब दे देंगे, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक रिसोर्सेज आज भी चाइना से ज्यादा है। हमारे पास नेचर में हर चीज हिंदुस्तान में पैदा है, हर चीज मिल रही है हमारे पास। मैं तो आई वंडर, जब पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था, देख रहा था कि साहब हमारा जो कोवैक्सीन है वो इसलिए प्रोडक्शन नहीं हो पा रही क्योंकि हमें ये एक एडजुवेंट है, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अरे भाई, एडजुवेंट आप हिंदुस्तान में तलाश करो, एडजुवेंट के बहुत सारे अल्टरनेटिव हिंदुस्तान में हैं। पिछले दिनों हुआ कि साहब हम जो बेसिक रॉ मटेरियल है अपनी ड्रग्स का, जो मेडिसिन का, हमारा मेडिसिन हम बनाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन बनाते हैं, लेकिन उसका रॉ मटेरियल हम चाइना से खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं भाई? हमारे पास कमी है क्या?
चाइना ने 1990 के अंदर फर्मेंटर्स एस्टेब्लिश करने शुरू करे। क्यों चाइना बन गया इतना बड़ा? बायो रिएक्टर्स उन्होंने करे, बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और बायोटेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में ले आए। इलेक्ट्रॉनिक्स में वो आए, इलेक्ट्रॉनिक्स में भाई आप इसमें करिए ना। आप एक मोबाइल फोन जो है, आप एक मोबाइल फोन तक तो आप इंपोर्ट कर रहे हो। आप एक 5,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए का मोबाइल फोन नहीं बना सकते? क्यों नहीं भाई? आप कहते हो हम तो हवाई जहाज बना रहे हैं, हम तो मिसाइल बना रहे हैं, हम तो चांद पर पहुंच गए, हम तो सूरज पर पहुंच जाएंगे, सब पे पहुंच जाएंगे। अरे पहले मोबाइल फोन तो बना लो अपना जो होम प्रोडक्ट है वो तो बनाना शुरू करो। होम प्रोडक्ट को लाना तो शुरू करो, होम प्रोडक्ट को लाइक करना तो शुरू करो। लाइए टेक्नोलॉजी, आप करिए। आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हो? आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? है? अब तक आप आर्म्स सारे के सारे आप आर्म्स इंपोर्ट करते, क्यों इंपोर्ट करते हो भाई? बनाओ अपने यहीं। हालांकि अब सरकार की सोच बदली है, अगर आप देखें तो ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर सरकार ने डिफेंस में भी आ गई है, मार्केट खोल दिया उसने, प्रोडक्शन बढ़ाई है। पीपीई किट देखिए हमने बना दी पूरे वर्ल्ड से, सैनिटाइजर हमने पूरे वर्ल्ड को बना के सप्लाई किया। वेंटिलेटर बनाने में क्या दिक्कत थी? वेंटिलेटर में कौन सी फारसी की आंखें बनाते आप उसको भी। तो जैसे मैं देखिए एक यहाँ तारीफ एक करूंगा, यूपी गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा इस बात पे। यहाँ जब सैनिटाइजर की बात हो रही थी तो शोभित विश्वविद्यालय ने 13 मार्च को, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने रात को फ्लाइट बंद की और हमारे चांसलर साहब ने हमसे कहा, मैं 14 मार्च को हमारा कन्वोकेशन था देखिए, तो रात को हम यहीं थे, चांसलर साहब भी यहीं थे हमारे यूनिवर्सिटी के। तो हमसे बोले कि भाई हमारे यहाँ जैक सिम को आना था सिंगापुर से। वो मुझसे बोले भाई गर्ग साहब अब जैक सिम तो आ नहीं रहे हैं, उनको हमें डिग्री देनी थी और कन्वोकेशन हमारा 14 मार्च को है, और अब ये कोविड वाली चीज होगी तो कैसे करोगे आप? मैं सर आप चिंता मत करिए, हम सबको सैनिटाइजर सुबह दें। 13 मार्च की रात को मेरी 8 बजे बात हो रही है चांसलर साहब से, और बोले और 14 मार्च को अगले दिन हमारे यहाँ कन्वोकेशन था। कहाँ से दोगे भाई? मैंने कहा साहब मैं माइक्रोबायोलॉजी का आदमी हूँ, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द माइक्रोब्स। कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि माइक्रोब्स को आप हल्के में मत लीजिए, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट को भी आप हल्के में मत लीजिए। मैंने अपनी टीम को यहाँ तैयार किया और रात भर बैठ करके हमने यहाँ पर सैनिटाइजर बनाया। फॉर्मूला पता था हमको, हम तो माइक्रोबायोलॉजी के आदमी हैं भाई, रोजाना लैब में यूज कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर करके ही हम माइक्रोब्स को डील करते हैं, नहीं तो अब तक भगवान को प्यारे हो गए होते। तो सैनिटाइजर की हमने छोटी छोटी बोतल बनाई और अगले दिन सुबह 8 बजे हमने 5,000 बोतल छोटी वाली हमने गेट पर रखवा दी। मैंने कहा लीजिए साहब, जो भी आए सबको आप दी। एवरीबडी शोभित यूनिवर्सिटी का लेबल लगाकर हमने दी। फिर हमें सरकार ने भी सपोर्ट किया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने सपोर्ट किया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको अल्कोहल का लाइसेंस भी दिया, थैंक्स टू देम। वो हमारे पास आए, शोभित यूनिवर्सिटी ने हमारा जो इंटरनेशनल हॉस्टल था वो भी हमने खोल दिया। आइसोलेट क्वारंटाइन वार्ड बना हमारा 100 बेड का, वो भी हमने दिया। एंड इट वाज हमारा बेड बेस्ट वार्ड बेस्ट था। हमको भारत सरकार ने AICTE ने हमको विश्वकर्मा अवार्ड भी दिया शोभित विश्वविद्यालय को। तो ऐसा नहीं है, हम सोच बदलें, काम करें, सामने आए तो चीजें बदलेंगी। आपका कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज होता है, चीजें सोसाइटी मानती है, सोसाइटी देखती है, प्रशासन देखता है। कब तक नहीं देखेगा भाई? हाउ लॉन्ग दे विल इग्नोर मी? जब तक हमारी ये भावना नहीं होगी तब तक हम नहीं करते। तो हम सामने आए, जो चीज हमें आती है उसको हम सामने आए बताएं। अब आप देखिए, आज भी मैं आपको कहता हूं, हिंदुस्तान का जो मैनेजमेंट था कोविड-19 का फर्स्ट वेव में, इट वाज टॉप इन द वर्ल्ड, टॉप इन द वर्ल्ड। सेकेंड वेव में हमारे से कुछ चूक हुई, आई एडमिट इट। वो चूक क्यों हुई उसके लिए सब रेस्पॉन्सिबल, पब्लिक भी रेस्पॉन्सिबल है, सरकार भी रेस्पॉन्सिबल है,
हर आदमी रेस्पॉन्सिबल, इवन मीडिया भी रेस्पॉन्सिबल है। आपके चैनल से ही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय क्या था कि हमें पब्लिक को एजुकेट करना, पब्लिक पर एनफोर्स करना, मास्क लगाने के लिए उनको कहना, मास्क, सोशल डिस्टेंस, दैट वाज सोशल डिस्टेंस नहीं, फिजिकल डिस्टेंस वर्ड यूज होना चाहिए। सोशल डिस्टेंस इज नॉट ए गुड वर्ड, टेक्निकली दिस शुड बी द फिजिकल डिस्टेंस। वो हमें लोगों को जो नहीं मान रहे थे उन पे एनफोर्स करना चाहिए, उन पे एनफोर्स करना चाहिए। वी डिड नॉट रेज इट। अब तीसरी वेव की संभावना जैसे कि प्रिडिक्टेड है, थैंक्स टू, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो है टाइमली इंटरवीन किया। टाइमली अगर वो सेकंड वेव पे इंटरवीन कर लिए होते और चुनाव को हटवा दिए होते, आपके प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, और जो कुंभ का मेला होता उसको हटवा दिए होते, तो हम ये चीज फेस नहीं करते। पब्लिक गैदरिंग भाई आप नहीं कंट्रोल कर सकते। आप पब्लिक गैदरिंग जब होगी तो आप पब्लिक में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर आदमी मास्क पहनेगा, आप नहीं कर सकते। एक देयर आर प्रोटोकॉल, साइंटिफिक सोच, अपनी वैज्ञानिक सोच बनाइए, वैज्ञानिक सोच के हिसाब से कंट्रोल कीजिए। और अभी भी मैं कहता हूं, अगर आप जो है सबको मास्क कंट्रोल नहीं कर सकते तो पब्लिक गैदरिंग अलाउ मत कीजिए। स्टिल दिसंबर 2021 तक मैं विजुअलाइज करता हूं कि शायद हो सकता है कि सरकार जो है 60-70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन कर देगी, और विदाउट वैक्सीनेशन कोई इसका रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। Still it is very difficult to find a antiviral drug for its treatment. Prevention is the best cure. तो जो चीज है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए सरकार ये इंश्योर कर दे के साथ हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाए, तो आई हैव नो डाउट दैट के अगले 5 साल में पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सपना देख रहे हैं, 5 की जगह 10 भी हो सकता है, 5 की जगह 10 भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। आप फोकस करिए स्किल पे, आप फोकस करिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन पे, आप फोकस करिए एग्रीकल्चर पे, आप फोकस करिए पूरी जितनी भी आपकी इकोनॉमी प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट पर। आप तलाशिए कहाँ हम चीज को बेच सकते हैं, कहाँ हम compete कर सकते हैं। किसको चाहिए भाई सैनिटाइजर, हिंदुस्तान बेच दे, बहुत बढ़िया। मैं तो गवर्नमेंट को कहता हूँ कि उन्होंने अल्कोहल की पॉलिसी को लिबरेट कर दिया है, भाई क्यों कंट्रोल कर रहे हो? आप बनाने दीजिए शुगर इंडस्ट्रीज को अल्कोहल, करने दीजिए उन्हें एक्सपोर्ट, सैनिटाइजर बनाने दीजिए उनको, करें वो एक्सपोर्ट। अब ऑक्सीजन के प्लांट्स बन लग गए हैं बहुत सारे, देखना कुछ दिन बाद ऑक्सीजन एक्सपोर्ट होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का इतना डिमांड तो हमारे यहाँ घट जाएगी। तो ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करिए, उसको एक्सपोर्ट की तो जो मिनिस्ट्री है उसमें तो 4-5 कॉमर्स मिनिस्ट्री बना करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की अलग मिनिस्ट्री हो, मतलब जो बाकी हैंडीक्राफ्ट्स की अलग हो, तो इट शुड बी। मैं देखिए, अब आपके प्लेटफॉर्म हमें सीखना चाहिए। मेरे बेटे का ट्रांसफर जैसे यूएस से अब इंडिया हो गया, वो मल्टीनेशनल कंपनी में, यूएस एम्बेसी के अंदर स्कूल चलता है, अमेरिकन एम्बेसी स्कूल, पता नहीं आपको पता है नहीं पता। और वहां मेरा ग्रैंडसन और मेरी ग्रैंड डॉटर दोनों जाते हैं पढ़ते एम्बेसी के। हमारी एम्बेसी क्या कर रही है भाई? मैं तो बहुत सारे कंट्रीज में रहा हूं, हमारी एम्बेसीज ने कभी सोचा कि हम भी वहां ये बिजनेस करें? बिजनेस नहीं है, हम भी ये प्रमोशन करें, हम भी वहां अपनी कल्चरल एक्टिविटीज को हम भी अपने बिजनेस प्रोडक्ट को बढ़ाएं, हम भी अपने भारत के जो शुगर केन जूस है उसको जाकर के वहां दें, कोकोनट वाटर को बेचें, उसको प्रमोट करें। नहीं करती ना हमारी एम्बेसी का, सोच ही नहीं है वहां। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी।
और सोच बदलनी पड़ेगी। हमें पूरा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, बिजनेसमैन, इंटरनेशनल बिजनेसमैन। हर चीज हमें ये करनी पड़ेगी। अगर मैं इससे बात कर रहा हूं तो उससे मुझे फायदा क्या होगा? बिजनेसमैन का ये वर्ड जो है आज की डेट में इकोनॉमिक वर्ड है, इकोनॉमिक वार है, और उसमें हमें फिट होना पड़ेगा। एजुकेशन पॉलिसी को भी हमें उसमें फिट करना पड़ेगा। मतलब ये ब्रॉडर टर्म में हमें बहुत बेनिफिट देगा। आई थिंक आपने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिए। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। बेनिफिट से लेकर चैलेंजेस, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल पर्सनली। बहुत सारे आई थिंक हमें इंसाइट्स मिले हैं। सो थैंक यू सो मच सर। एंड या, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद यू and to interact with your platform. Thank you very much. And it will be my pleasure to connect with the people. मेरी जो अपनी व्यूज हैं, जो मैं पढ़ता रहता हूँ, जो मैंने सीखा है, मेरा तो अब समय यही है कि भाई मैं जितना भी समाज को दे सकूँ उतना मैं दूँ, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक्स टू योर चैनल, थैंक्स टू द व्यूअर्स। थैंक यू। So देखा आपने how Professor Amar Prakash Garg was to the point, and if we actually work on the recommendations, I am sure that India has the power to reach pinnacles. Am I right? So that was all for today's segment. If you like today's content and video and the insights, then please do like, share and subscribe to DNP India. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Keep loving us, keep showering your love and keep watching DNP India.